एक मैन को एक कोई खाली नहीं दिखेगा बंद रखें हेलो
यहाँ पे मोबाइल वाला किधर है कोई? मंदिर के बाजू क्या हुआ तो डन पे जय जिनेन्द्र बधाने पटेल नगरना वडील बंधुओं ने मारा प्रणाम। कोरोना सायमा बधानी काळमा बधानी तबियत सारी हशे। આપણે હવે પહેલા તો આપણે ગણપતિ બાપાનું નામ લઈ અને ગણપતિ બાપા એ ગણપતિ બાપાના નામ લઈને આપણે શરૂઆત કરીએ અને આપણે આ એસજીએમ મીટિંગનું શરૂઆત કરીએ છીએ। આપણા ચેરમેન શ્રી હેમલતાબેન ભંડારી બારગામ હોવાથી આજના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે હું મયંકભાઈ શાહને સજેસ્ટ કરું છું અને આગળની મીટિંગની કાર્યવાહી આગળ વધારીએ। મયંકભાઈ શાહ કોણ છે? હેલો, મયંકભાઈ શાહ કોણ છે? એનું ઇન્ટ્રોડક્શન તો આપો। કમિટી મેમ્બર મયંક, અચ્છા મયંક, ફ્લેટ નંબર D 306 પટેલ નગર। હા હા બોલો। હા તો દેખાતા નથી તમે લોકો સ્ક્રીન પર। આવ્યો હા આવ્યા આવ્યા, અત્યારે દેખાયા। તો આગળ હવે સ્ટાર્ટ કરું હમણાં। રિક્વેસ્ટ ઓલ ટુ કોઓપરેટ। યુ ઓલ નો ધેટ વી હેવ લિમિટેશન ઓફ ટાઈમ। આપણી પાસે સમય ઓછો છે અને આજે આ કોરોનાનો ટાઈમ છે તો એની માટે આપણે આ ઝૂમ મીટિંગમાં મીટિંગ લેવાની છે। તો આપણે હલો હલો, હા? એક મિનિટ, અરે કોરમ નથી થઈ તમારી, મીટિંગ પોસ્ટપોન કરો। કોરમના હિસાબે મીટિંગ નથી। કેટલા છે પાર્ટિસિપેટેડ? રેકોર્ડિંગ કરો જ કે નહીં તમે લોકો? એ હા, પહેલા કહો ચાલુ તમે। ચાલુ હા બસ લાસ્ટ ટાઈમ રેકોર્ડિંગ કેમ નથી આવ્યું તો હજુ તો? અંકલ અત્યારના 48 જણ છે। નહીં નહીં, પ્રેઝન્ટ કેવી ના થઈ શકે? હા 250 માંથી ખાલી 48 પેશન્ટ છે તો કેવી રીતના તમે મેજોરિટી કેવી રીતના લઈ શકવાના? મિનિમમ 1/3 હોવા જોઈએ ચાલુ કરતી વખતે। 1/3 નથી તમે। તમે આગળ વધો। ના ના, તમે વાદળ વધવો તો વધો। આગળ વધવાનું meaning શું પણ? ઓબ્જેક્શન છે મારું, તમે આ ખોટું કરી રહ્યા છો।
તમને કહી દઉં છું ખોટું કરી રહ્યા છે બાયના લોસ પ્રમાણે તમને જણાવી દીધું છે. ઓકે, તમારો ઓબ્જેક્શન નોટેડ કરીએ છીએ પ્રમોદ અંકલ. હા અને આ મીટિંગ સાથ હું આપું છું, પ્રમોદભાઈને સાથ આપીશ હું. અત્યારનું હું હવે સ્ટાર્ટ કરું છું. અત્યારના 10:40 થઈ છે. તો 55 જણા છે, 10:34 થઈ છે. ચાલે એને અરે પણ- તમારે રાહ જોવી પડે, એડજોર્ન કરવી પડે મીટિંગ અડધો કલાકમાં 15 થી 20 અડધો મિનિટ કલાક પછી ચાલુ. પોસ્ટપોન કરવી પડે, 11 વાગે ચાલુ કરો. હા ખોટું નહીં કરો તમે, કાર્ય બધું ખોટું કરી રહ્યા છો બેઠા બેઠા. એક તો સમજતા નથી કમિટી મેમ્બરોને કઈ બી, ને ગમે તેમ ચલાવી રાખો છો કમિટી. 11 વાગે ચાલુ કરો. એ પણ મેજોરિટી હશે તો જ ચાલુ રાખવાની, નહીતર નહીં. હલો રિક્વેસ્ટ અંકલ યુ આમ બધાને ખબર છે કે ભાઈ ટાઈમનું ઝૂમ મીટિંગમાં ઓલું લિમિટેશન હોય છે, એટલે આપણી મીટિંગ સારી રીતના ચાલુ થાય અને ખતમ થાય. તો આ બધું જે અજેન્ડા છે બધા જે તમને મોકલાવેલા છે એની અગેન્સ્ટમાં ઓલું બધું સાથે રાખીને અને આ મીટિંગ ખતમ થઈ જાય, બંધ થઈ જાય અગર ટાઈમના હિસાબમાં, તો એ પાછા જોઈન થઈ જજો. અને હું આગળની મીટિંગ માટે સ્ટાર્ટ કરવા માટે હું આપણે પ્રવીણભાઈ પારીખને, અમારા કમિટી મેમ્બર પ્રવીણભાઈ પારીખ ને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આગળની પ્રોસિજર સ્ટાર્ટ કરે. ભાઈ બહેનો, સૌથી પહેલા પટેલ નગરના માતા બહેનોને આજના મજાકના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે દરેક મધરના આશીર્વાદથી માને આશીર્વાદ ભગવાનના આશીર્વાદ છે. આપણે એમાં જે બી કાર્ય કરીએ બધાને કહેવાથી આપણે આગળ વધી શકીએ. દરેક માતાને રિક્વેસ્ટ છે કે અમને તમે આશીર્વાદ આપો કે પટેલ નગરનું કાર્ય સારી રીતે આગળ વધી શકે. હવે પહેલું રીઝન છે ટુ રીડ ધ મિનિંગ ઓફ ધ લાસ્ટ AGM. હું અત્યારે પહેલા એ લાસ્ટ AGM રીડ કરું છું. ધ મિનિંગ ઓફ ધ સ્પેશિયલ મિનિંગ ઓફ ધ સ્પેશિયલ જનરલ મીટિંગ held on 16 June 2019. પ્રવીણભાઈ On Sunday, 6 June 2019, is a society for પ્રવીણભાઈ for the redevelopment of society building. The meeting was scheduled. પ્રવીણભાઈ સાંભળો શું કહે છે? પ્રવીણભાઈ સાંભળો જરા પ્લીઝ. આ એક તો તમે મીટિંગ જે કન્ડક્ટ કરી રહ્યા છે ઇનલીગલ છે, સાંભળી લો. કેમ કે તમારું સર્ક્યુલર ડેટેડ 7 મે 2021 છે અને મિનિમમ સ્પેશિયલ તમારો ઓબ્જેક્ટ નોટ કરી લઈએ છે. તમારો ઓબ્જેક્ટ નોટ કર્યો છે. હા તમારો ઓબ્જેક્ટ નોટ કરીને આગળ વધીએ છીએ. હા The meeting was scheduled at 11 a.m. but it was adjourned and started at 11:45 a.m. Total number of society is 45 and to start at 8 a.m. 75 બહુ એકો આવી રહ્યો છે પ્રવીણ અંકલ, તમે જે રીતે member બોલો છો એકો આવી રહ્યો છે. present to start the meeting. When call was taken, attendance was 180 people were present before the starting of meeting. The Vodafone number allowed after due verification of ID issued by society along with photo ID. The attendance of 126 present meeting ખોટી કરી રહ્યા છો. પ્રવીણભાઈ after signature of the પ્રવીણભાઈ તમે declaration meeting of ખોટી કરી office, રહ્યા છો. some members were attended and signed their register. And total number of present was 105. Chairman has welcomed the society પ્રવીણભાઈ તમે જે બી કાંઈ બોલો છો બધું સાંભળો પહેલા. કોઈને કાંઈ સંભળાતું નથી. પહોંચતા હો. એકો આવે છે.
પ્રવીણભાઈ બીજા કોઈ જરા કોઈ કહે છે પ્રવીણભાઈ પ્લીઝ જરા From the in the presence of 196 he has requested to raise their hand who are limited. He has requested to raise their hand. None of the members did not raise their hand. In front of Mr. S.P. number 196. The meeting was concluded with a vote of thanks of the Deputy Registrar, Mr. Karan Saab, PMC, and member of the society. અમને કોઈ જરૂરત નહીં પેલા બધાનું સાંભળો પછી તમે આગળ વધો તમે પેલા બધાનું સાંભળો પછી આગળ વધો કોઈ સવાલ નથી એમાં બધાને કોઈની પેલા ક્વેરીઝ છે બધાની એ પેલા ક્વેરીઝ બધાની સાંભળો પછી તમે આગળ વધો તમને રિક્વેસ્ટ છે બધાની ક્વેરીઝ સાંભળો એજન્ડા પ્રમાણે અમે જઈ રહ્યા છે એજન્ડા પ્રમાણે બરાબર છે અરે પણ એજન્ડા ન સમજાતો તો શું થયું લીગલ એડવાઇઝર તું બોલ્યા જ નથી ખબર દેડિયા એ સજેશન માં મેનેજિંગ એજન્ડા યોગ્ય હવે એકચ્યુઅલી આપણી પાસે પહેલા નિલેશ પરમાર જે એડવોકેટ હતા એ કન્વેન્સ ના કામ માટે હતા એમને કન્વેન્સ નું કામ પૂરું કર્યું પણ એમના કામમાં આપણને જો એટલું સેટિસ્ફેક્શન નથી મળ્યું અને આપણને ઇનહાઉસ એક ડે ટુ ડે એક્સપિરિયન્સ વકીલ એટલે અમે ઘણા મેમ્બરો સાથે બી ડિસ્કસ કર્યું કમિટીમાં બી ડિસ્કસ કર્યું ઘણા એડવોકેટ સાથે બી ડિસ્કસ કર્યું એ બધાને જોડે વાત કર્યા પછી અમે સતીશભાઈ દેડિયાની એપોઇન્ટમેન્ટ કન્ફર્મ કરીએ છીએ અહીંયા કે એ એટલે અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ કે આપણે એને આપણે એપોઇન્ટ કરવા જોઈએ સતીશભાઈ आवाज गया 7 તારીખનો સર્ક્યુલર છે તમે હેલો જે એજીએમ આપણે 7 તારીખનો સર્ક્યુલર કરી એનો પ્રપોઝલ આપણને પ્રવીણભાઈ સર તમે એડવોકેટ તમે જ્યારે સિલેક્ટ કરો ત્યારે તમે પરમિશન લીધેલી છે સોસાયટી મેમ્બરોની કઈ નથી લીધું કઈ નથી કરતા બધું ખોટું કરી રહ્યા છે ઇલીગલી કરી રહ્યા છે બધું તમારા જે મેમ્બરોના ઓબ્જેક્શન જવાબ નથી આપતા કરીએ છે અને આગળ વધી રહ્યા છે પહેલા મીટિંગ ને સાંભળો અમે પ્રવીણભાઈ સાંભળો પેલા વાત કરો પછી જવાબ આપો બરાબર સાંભળો પેલા સાંભળો તો ખરા કે નહીં સાંભળવાનું કે નહીં સાંભળવાનું એ લોકોને સાંભળવું નથી 7 તારીખનું તમે 7 તારીખની સર્ક્યુલર તમે કાઢ્યું છે મીટિંગના 3 દિવસની નોટિસ આપવી જોઈએ સ્પેશિયલ જનરલ મીટિંગ માટે તમે આ નોટિસ આપી નથી 3 દિવસની પ્રોપર નોટિસ આવી જોઈએ એ તમે આપી નથી પછી વિધાઉટ એક્ઝિક્યુટિવ તમે ડીએ એગ્રીમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ વગર તમે કોઈ બી પાવર કોઈ બી ઓથોરિટી આપી ન શકાય એઝ પર ધ 79 રૂલ પ્રમાણે કોઈ બી તમે આપી ન શકાય પાવર તમે આ ખોટી મીટિંગ કરીને કરી રહ્યા છો પહેલા ડીએ તો પાસ કરવો પડે કે નહીં હા પહેલા એ તો છે જ એ તો બધું ઓડિટરે બી એપોઇન્ટ નથી કર્યા સોલિસિટર ડીએ ની અંદર આપણે બધી ચેન્જીસ કરાવવાના છે એ ચેન્જીસ કરાવ્યા વગર બધું પાસ કરી દેવાનું
કોઈ મીટિંગમાં પાસ નથી થયું, બધા મીટિંગ વગર એમને ચાલી રહ્યું છે. એટલે આપણે નાકા થઈ જવાનું. ના આ મીટિંગ જ ખોટી છે ને. 3 દિવસની નોટિસ આપી છે. 7 નહીં તારીખે એટલે આપણે નાકા થઈ જવાનું ને પબ્લિક ને. હા આપણે શું જવાનું નાકા થઈને. તેમ જવાબ નહીં આવ્યો. કઈ નહીં આવે જવાબ. બંધ છે એ લોકોનું. કઈ નથી જવાબ. જવાબ દો ભાઈ, જવાબ. પ્રમોદભાઈ પરત પાછો ક્વેશ્ચન કરો તમને. આ મીટિંગ નો સર્ક્યુલર આપણે 7 તારીખે પ્રમોદભાઈ, હવે કાઢવા. તમારું ઓબ્જેક્શન અમે નોટ કર્યું છે. અમને રાઇટિંગમાં બી લેટર તમારો મળ્યો છે. ભાઈ અમે નોટ કરી છે અને અમે એ બધું ધ્યાનમાં રાખીને જ મીટિંગ આગળ વધારીએ છીએ. હવે જે પહેલી એચજીએમ આપણે લાસ્ટ ટાઈમની મિનિટ રીડ કરી એને પ્રપોઝ અને ક્વેશ્ચન કરો. મારા લેટર નો રિપ્લાય આપો. તમે મારા લેટર નો રિપ્લાય આપો પહેલા. મારો લેટર નહીં વાંચો. અત્યારે મીટિંગમાં વાંચો શું આવ્યું છે. વાંચવાનું છે. લાસ્ટ ટાઈમ તમે અને શું એજન્ડા આવશે ત્યારે વાંચીશું. કેવો એજન્ડા આવવાનું છે? પહેલા એજન્ડામાં છે તમારો ઓબ્જેક્શન છે મને મીટિંગ ખોટી છે તમારી. ને અંકલ એટલે શેની મીટિંગ ખોટી છે? એટલે આ લેટર નું જે ઓલું મોકલાવેલું ને 2 તારીખે મોકલાવેલું છે. 7 તારીખે નથી મોકલાવેલું. 7 તારીખનું પાછું રિમાઇન્ડર છે. તમારો લેટર, તારો લેટર નો ડેટેડ અહીંયા ક્લિયર લખ્યું છે. આ હું બધાને બતાવું છું. અહીંયા સામે છો 7 તારીખનો લેટર છે. કઈ બધાને વર્બલી કહેવામાં આવ્યું છે કમિટી મેમ્બર માંથી કે તમે મીટિંગ પોસ્ટપોન થઈ ગઈ છે, કેન્સલ કરવામાં આવી છે, અને પછી તમે સડનલી પાછો સર્ક્યુલર કાઢો છો. ના સર્ક્યુલરમાં ક્યાં લખ્યું છે કે રીશેડ્યુલ કે એવું કઈ લખ્યું છે? 7 તારીખનો લેટરનો ડેટ છે. એમાં કોઈ નથી લખ્યું કે પેલા રિફર ટુ 2 મે નો લેટર ની રિફર કરીને તમે લખી રહ્યા છો. તમે ખોટું કરી રહ્યા છો. એમાં શું થશે તમને કહી દઉં. તમને આખી 2 વર્ષની 3 વર્ષની આખી એક્સરસાઇઝ કરી છે 79 એની આખી બધી તમારે કેન્સલ થશે. એક બી મેમ્બર જો સોસાયટીનો જો બી કમ્પ્લેન કરશે જઈને ઓફિશિયલી તો આખું બધી પ્રોસેસ આખી કેન્સલ થઈ જશે ને પાછું આખી નવેસરથી બધું કરવું પડશે તમારે. કેમ કે મેં પહેલા લેટરમાં બી મને કહેવામાં આવ્યું છે તમે એડવોકેટ નથી એપોઇન્ટ કરતા, આર્કિટેક્ટ એપોઇન્ટ નથી કરતા, સોલિસિટર એપોઇન્ટ નથી કરતા, વિધાઉટ સીએ ને એક મિનિટ સીએ એના વગર એપ્રુવલ વગર તમે લોકો એને બધું આપવા પરમિશન બી આપવા તૈયાર થઈ ગયા છે. એની ક્રેડિબિલિટી જો કઈ બી જોતા નથી. અને એનાથી ઉપર તમને મેં કઈ લખીને બી બતાવ્યું છે, તમને કહીને બી આપ્યું છે કે તમે સબ કમિટી બી નિમવાની વાત કરી. તમે એને રેફરમાં તમે લેટર બી મને મોકલો છે કે સબ કમિટી નિમવાનું. એટલે ધેટ મીન્સ યુ એગ્રી કે સબ કમિટી બનવી જોઈએ. કેમ નથી બની સબ કમિટી? યુ કમિટેડ ધેટ ઇઝ યુ નોટ ડન ધ એઝ પર ધ રૂલ. You given me a letter signed by the secretary Pankaj Vora. The summit committee is not made. You come and done the committee. That means you are doing the wrong. Without sub committee, you going to proceeding further. કેવી થશે કે કામ? ખોટું કરી રહ્યા છો. બધું આખી મહેનત 3 વર્ષની બધી મહેનત નકામી જશે. હું તમને વોર્ન કરું છું. આ નહીં આ રાજકિશોર કેસ એમાં હું તમને 17 સોસાયટીને બતાવું છું. 1 મિનિટમાં તમારું આ બધું આખું પ્રોસેસ બધું કેન્સલ, એપોઇન્ટમેન્ટ કરેલો બધા તમારા ડેવલપર બધું કેન્સલ થઈ જશે. હા તમારી ઓબ્જેક્શન નોટ કરી છે અંકલ જે તમે હમણાં હવે તમને રિમૂવ કરી તમારું પ્રમોદ અંકલ તમારું જે બી ઓબ્જેક્શન છે ને એકવાર અહીંયા સોસાયટીમાં મોકલાવી દો એટલે ખબર પડે શું છે ઓબ્જેક્શન. ઓબ્જેક્શન તો મોકલાવ્યા છે તમને, લેટર મોકલાવ્યા છે ને. ડીએ પાસ કર્યા વગર તમે કેવી રીતના બધું આગળ પ્રોસીડ કરી શકો? હા ડીએ પહેલા પાસ કરાવવા બધા પાસેથી પરમિશન લીધી છે. ડીએ પાસ બધા જે ક્વેરીઝ હોય એના પાસ કર્યા પછી તમે આગળ બધી પ્રોસીજર કરી શકો ને. તો એના વગર તમે આગળ બધું કઈ ના કરી શકો છો? ઓબ્જેક્શન હોય એ ડિસ્કશન કર્યા વગર તમે મોકલાવો. અમે એનો તમને રિપ્લાય આપીશું અને તમે આ રીતે આવી બધી ઇન્ટરફિયર કરીને રોકવાનો ટ્રાય કરો ને અમે તમને આઉટ કરી દઈશું મીટિંગ માંથી અને અમે મીટિંગ આગળ વધારીએ છીએ. હવે પહેલો આપણે મહેરબાની કરીને વચ્ચે ડિસ્ટર્બ નહીં કરતા. તમારો આ તમને એડવાન્સમાં આવીને 5 મિનિટ ના ના જવા દો યાર. હવે
આ લોકોને ટેવ પડી ગઈ છે એક જાતની આપણે. બસ. દરેક વખતે ઓબ્જેક્શન સાથે આવીને બેસવું નથી. તમને એજીએમ માં બી કહ્યું કે સાથે આવીને બેઠો તે પછી આવતા. હા. હવે આપણે આ જે એજીએમ ની ફીડ કરી એનું પ્રપોઝ અને સેકન્ડ ભાઈ નું બે નામ આપો પ્રપોઝ આપ્યું ગોપાલ પૈસા એક વીક માંથી એને પ્રપોઝ લઈએ છે અને સેકન્ડ માટે કોણ છે? હા, હિરજીભાઈ કિંદ્રા છે. હિરજીભાઈ કિંદ્રાને સેકન્ડ માટે લઈએ છે. હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ થર્ડ એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ઓડિટર actually એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ હવે આપણે લઈએ એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ડેડિયા. તો આપણી પાસે પીએમસી તરીકે કરણભાઈ છે અને લીગલ કન્વેન્સ માટે આપણી પાસે નિલેશભાઈ હતા. હવે આપણે જે ડે ટુ ડે લીગલ અને ઇનહાઉસ બધું જે જોવાનું એના માટે આપણે ઘણા બધા સાથે ડિસ્કશન કરે છે. કોટેશન બી વર્બલી બધા વાત કરી છે ને એ નક્કી થયા પ્રમાણે છેલ્લે કમિટીએ નક્કી કર્યું છે કે આપણે જે સતીશભાઈ ડેડિયા છે એને આપણે એપોઇન્ટ કરીએ છીએ આના માટે. હવે સતીશભાઈ એટલે ડેવલપમેન્ટના ભાઈ અનુભવી છે. અમે એની સાથે મિટિંગો બી કરી છે બધી અને છેલ્લે આપણે અત્યારે સતીશભાઈને એપોઇન્ટ કરી રહ્યા છે. તો મારી બધાને રિક્વેસ્ટ છે અત્યારે લીગલ મેટર ડેવલપરો સાથે મેં 1990 કામ કરેલા છે અને એમની પાસે ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે ડેવલપમેન્ટ અને એમના બીજા બધા એક્સપિરિયન્સ પછી નક્કી કર્યું કે આપણે સતીશભાઈને અત્યારે આપણા સોસાયટીના રીડેવલપમેન્ટ અને બીજી બધી મેટર માટે આપણે એમને એપોઇન્ટ કરી છે લીગલ કન્સલ્ટન્ટ અને એના માટે સોસાયટીના મેમ્બરને પૂછીને કરવું પડે. સોસાયટીના મેમ્બરને નથી બંધ કરો ગાંધી તમારી એક ટેવ બંધ કરો ખાલી ઓબ્જેક્શન લે કરો કામ કરું કશું નહીં. ખોટું થતું હશે તો બોલીશ હું. તમે ક્યારે છો? હવે આ સતીશભાઈની એપોઇન્ટમેન્ટ બી કેન્સલ આપણે એપોઇન્ટમેન્ટ નિમણૂક થઈ ગઈ છે એના માટે પ્રપોઝ અને સેકન્ડ ના બે નામ લેવાના છે. રાઈટ તો કોઈ અડાવી ન શકે ને તમારે. તમે એમ કેમ કીધું કે ઓબ્જેક્શન ન કરો? તમારા નામ ઓબ્જેક્શન માટે તો કોઈ કરી શકે ઓબ્જેક્શન આપો એટલે આપણે આગળની કાર્યવાહી આગળ ચાલુ થાય. તો પ્રપોઝ માં કોણ નામ બોલો છે? પ્રવીણભાઈ સાંભળશો કે બધાનું વાત સાંભળશો પહેલા તમે? ના ના તમે જે હોય ઓબ્જેક્શન મોકલી આપો. સાંભળી જો નહીં અત્યારે એના માટે તમે મીટિંગ કરી દો બને પણ ઓબ્જેક્શન મૂક્યા પછી સોલ્યુશન નથી આવતું ને. તમે એનું રિપ્લાય પોઝિટિવલી આપો ઓબ્જેક્શન આપ્યા પછી. નામ બોલો યાર કોઈ એસા ગલત નહીં જાય. ઓબ્જેક્શન તમે આપણે કોઈનું પબ્લિક નોટ કરો છો પછી શું એમનું એક્શન આપો છો? ઈ કોને તમે શું એક્શન હા લીધું? મેં કહ્યું તમને. હા એ બી કહ્યું. શું એક્શન નું તમે બતાવો તો ખરી કે જેના લેટર્સ તમને લખ્યા છે એનો તમને શું રિપ્લાય આવ્યો? તમે શું રિપ્લાય આપ્યો છે? हाँ अभी ये लीगल कंसर्न जो अपॉइंट किया सतीश भाई डेडिया को कीर्ति भाई किंद्रा ने उनका प्रपोज किया है और अगेन सेकंड हैंड गोपाल भाई शाह ने किया है. एज विंग दोनों एज विंग एक एज विंग और एज विंग थे वो लोग ने सपोर्ट किया है प्रपोज एंड सेकंड भाई. तो हम लोग सतीश भाई को और अभी अपना સતીશભાઈ નો રેફરન્સ મને આપો પહેલા. સતીશભાઈ એને કેવી રીતના સિલેક્ટ કર્યો? પહેલા તમે પાસ કરી મેમ્બર સોસાયટીના પાસેથી મેમ્બર પાસેથી કે અમે આને અપોઇન્ટ કરીએ છીએ આટલા મારી પાસે 10 નામ આવ્યા હતા એમાંથી આપણે સિલેક્ટેડ ધીસ પર્સન ને એમને અત્યાર સુધી કેટલા પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરેલા છે ને એમનો રનિંગ કરતાના કેટલા કરે છે એમાં જરા ડિસ્ક્રાઇબ કરો. એમનું વાંચું નહીં બેકગ્રાઉન્ડ વાંચું. Generally, society appoint highly experienced advocate auditor, but particularly મને બોલવા દે આખા ઇન્ડિયામાંથી તમને મેસેજ આવ્યો હતો મીટિંગ હેન્ડલ કરો. હેલો કે તમને આઉટ કરી બોલો અવેલેબલ છે ઓન ઝૂમ મીટિંગ અમને અમે બોલવા દો શાંતિથી એકવાર. તમે સાંભળો હું જે બોલું છું એમનો એક્સપિરિયન્સ ને એમનો જનરલી જે કહું છું એ તમે સાંભળો. જનરલી auditor, but practically એમની સાથે બીજા કોના કોના આવેલા છે મેનેજ એમની સાથે બીજા કમ્પેરિઝનમાં મેનેજ છે. they do not give us sufficient time. Their junior advocates prepare agreement on basis of the standard draft available with them, hardly bother to understand the need of the party. Every time one need to follow up the appointment, only a few office bearers are allowed to attend. To attend their office bearers have to give up their work.
office મને કેમ bearer તમે are delete unable કરો to છો? access આમાંથી મને society remove કેમ કરો છો? need in such આ meeting. બધા Thus, senior please not the advocates do member. not explain They in remove detail, so office bearers hardly understand. going from As the per meet. rule, important આ મને decisions are to કાઢવામાં be આવે છે. taken by the general મારું body, but objection with note external નથી. guidance, proper decision could not be taken. Because such advocate are not available at general body meeting, office bearer who have visited advocate could not satisfy the general body. Other members feel that office bearers are acting like dictation. This result in loss of trust, faith, and anxiety. The situation become worse when the building is demolished. Developers took advantage of this situation and start dictating. Most of the time, though the agreement is drafted by highly paid advocates, society could not ensure that redevelopment is implemented as per the terms of the agreement. This hurt society in court matter. Considering the fact, we decided to appoint an advocate, visit and attend society meeting and interact with the member directly and inform the society member in detail, so the society member can take a proper decision. In case of very important or critical decision, society may take the advice of the senior advocate. Now, office bearer got the contact of 3 advocates and received quote from 4. Out of quote of advocate Satish Dedia found reasonable, and he was selected for the following reason. Overall 16-year experience of handling the legal work, litigation and non-litigation of real estate developer. He has experience of working with developers from 1993 to 2001 in almost all the department of the developer. So he can properly understand and can coordinate with the technical professional and guide us. The first-hand experience in development work, right from acquisition to handing over the he finished experience of turnout of toll project with multiple litigation. He has appointed as legal advisor for Dim Conveyance and redevelopment work by many societies. Experience of Mahadera, so file complaint 80. He has so far filed 80 complaints, 38 appeal, second appeal 10, SLP3. Ready to attend society meeting and address member directly. He will advise the managing committee at every stage on every legal aspect of the development. And that's why I support and propose the request all to ratify the managing committee decision of appointment of advocate Satish Dedia. Now proposed by again Hirjibhai Gindra, support by Gopal Bhai Shah. Now we'll go to agenda number 3. And to authorize the office bearer to install a board at a convenient place during the proposed development of the society to the developer. This is generally a first step taken by the society to formally inform the general public other than member of society about redevelopment. આ આપણું એક બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન માટે જ બોર્ડ મૂકવાનું છે કે જેથી બધાને ખ્યાલ આવે કે પટેલ નગરનું રીડેવલપ કે તમે જો ઘણા બધા આપણે પૂછી રહ્યા છે કે રીડેવલપમેન્ટ શું છે ક્યાં છે તો આ બોર્ડ મૂકવાથી બધાને એક ડાઉટ ક્લિયર થાય ને એના માટે જ આપણે આ એજન્ડા મૂકેલો છે. હવે આગળના જે આપણે એજન્ડા છે 4 and 5 એના માટે હું આપણા સતીશભાઈને કહું છું આપણા વકીલને કે તમને બધાને સમજ આપશે ને એમાં આપણે કઈ રીતે આગળ વધવું એ બધું તમને જણાવશે. હું સતીશભાઈ ડેડિયાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આપ આમાં આપણે બધા મેમ્બરોને ગાઈડ કરો અને સમજાવો અને એ રીતે આગળ વધો. મારે સતીશભાઈ સાથે વાત કરેલો તો મને એમનો પાકો રેફરન્સ નથી મળતો. સતીશભાઈ કોણ છે? म्यूट કરી દે છે એ લોકો. Resolution number 1. How you selected Satish only? Resolution number 1, 2 and 3. એ unanimously म्यूट pass કરી દે થઈ છે ગઈ. તમને म्यूट કરી દે છે તમને આપને અને બધાને જે જે બી કોઈનું બી પૂછે છે objection સવાલ હોય એ જવાબ please એને return म्यूट માં અહીંયા કરવાનો. society office માં આપી જાય. રિટર્ન આપી દે બધા આપી ગયા છે રપાન કોઈ જવાબ નથી આવતો. કોઈ જવાબ નથી આપવામાં આવતો. હા જવાબ નથી આપવામાં આવતો. એમ જ કરો ને મીટિંગ કામ કરો છો તમે પાસ કરી નાખો ને એમને જ બધું કામ મીટિંગ કરો છો તમે રાઇટિંગમાં ખાલી અમારું જ માંગો છો. આ તમારો ઓબ્જેક્શન સામે આગળ તમે કીધું પાસ કરવાનું કામ કરીએ ખાલી અમારું જ ઓબ્જેક્ટ છે કે બધાનું તમારા એકલાનું જ ઓબ્જેક્શન છે બીજા કોઈનું નહીં. એમને જેમનું બી ઓબ્જેક્શન છે બધાનું નોટેડ છે ઓબ્જેક્શન વિડિયો રેકોર્ડિંગ થાય છે અને એ રેકોર્ડિંગ થાય છે અને જે બીજું ક્યાં બી આપો હશે છો તમે રેકોર્ડિંગ ક્યાં આપો છો તમે એજીએમ ને? એક મિનિટ પ્રવીણભાઈ તમે મને પ્રોમિસ કરેલી કે એજીએમ ની હું તમને રેકોર્ડિંગ આપીશ કેમ આપી નથી મને જો એટલે આગળ વધે. હા તો અને જે બી હશે કેમ તમામ બોલતા નથી તમે? હા હા એજીએમ ની મને કેમ નથી આપતા મયંકભાઈ? મને કોઈ એ લોકો એજીએમ ની મને કેમ નથી આપતા?
SGM તમે નું આપો છો મને recording. હા એજીએમ ની મને રેકોર્ડિંગ માંગેલું નથી આપ્યું રાઇટિંગ માં આપ્યું છે અંકલ એનું જે રેકોર્ડિંગ છે ને એનું તમને મળી જશે કાલે. તમે એના જે બી ચાર્જીસ હશે સોસાયટીના, જે લાસ્ટ ઓલા એજીએમ ની જે મીટિંગ ની તમે કહી રહ્યા છો એનું હા, તમને કેટલા છે એનું charges? recording નથી મળતા. અને એમને એ ઓલું મળી જશે. કાલે આવીશો ને ઓફિસમાં એની હા. ઓલું જે બી ચાર્જીસ હશે સોસાયટીમાં વાત કરીને લઈશું એ કાલે આવીને એનું લઈ જજો રેકોર્ડિંગ. આગળના લેટરો જે લખેલા છે એના પણ અમને જવાબ નથી મળતા. હા લેટર નો રિપ્લાય કોણ આપશે લેટર ના રિપ્લાય કોણ આપશે આ બે જ જેનો object શેનું લેટર? અરે ભાઈ majority હવે બેલેન્સ શીટના એના પર લખેલું મારા પોઈન્ટ હતા એ બધા એજન્ડા નંબર લખેલું 4 મને સાથે સ્ટાર્ટ કરીએ રાઇટિંગમાં આપો તો લેટર માં જવાબ નથી આવે. એમને 1 મહિનો થઈ ગયો. હવે ખાલી discuss હું કરવાનું હોય તો સતીશભાઈ કાંઈ નહીં. આપણા જે લીગલ કન્સલ્ટન્ટ છે એમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આપણા આગળના એજન્ડા 4 અને 5 માટે આપણને બધાને સમજ આપશે અને એ પછી આપણે રેઝોલ્યુશન પાસ કરીશું. અરે પણ સાંભળો તમે જે અરે પણ મને પ્રવીણભાઈ તમે reference બોર્ડ આપો ને. લગાવી દો પહેલા બોર્ડ લગાવી દો આ બોર્ડ લગાવી દો એનો મતલબ આપણે આપી દીધા રિપીટ નહીં કરો પ્લીઝ. પેલા તમે સાંભળો, દર વખતે પ્રવીણભાઈ, દરેક તમે વાત meeting માં કરો, એક આપણો નહીં, બોલે એ તમને બરાબર છે. member. અરે બધા મેમ્બર ન બોલે એટલો મતલબ એમ છે કે તમને બધા મેમ્બર ક્યાં બી તમારે તમારા majority નો કોઈ તમારા objection સૂરમાં ક્યાં સૂટ પૂરા આવે તમારે એકલાનો જ છે એટલે અમે એને આપણા rule મેમ્બર out કેટલા કરીને છે આગળ ટોટલ અત્યારે વધીએ. અવેલેબલ? નહીં. ગઈકાલે ઓબ્જેક્ટ બી આપી દીધેલો છે. તમે મેલ વાંચેલો છે કે તમે તમારા મેલ સોસાયટીમાં આવેલો છે? અહીં અમે એનો reply કરીશું તમને. એને રિપ્લાય નહીં, એનો રિપ્લાય નો કઈ સવાલ નથી આવતો પરમણીભાઈ, પણ શું એક્શન છે ત્યાં રીકો તમે એમનો. તમને કાલે લેટર તમને તમારા ધ્યાનમાં છે તમને લેટર મળેલો છે ગઈકાલે સોસાયટી તરફથી? હેલો, કોઈ એની કોઈ ચર્ચા જ નથી કરતા, કોઈ ચર્ચા જ નહીં કરવાની, ખાલી બસ ભગાઈ જવાનું મીટિંગ ગમે તેમ કરી નાખવાની. કોઈ બોલે એટલે કે ખરાબ છે અમે લોકો, બસ થઈ ગયું. એ જ કે અમે લોકો ખોટા છે, ખોટી રીતે બોલતા હોય તો અમને કહો, અમે ખોટી રીતે બોલ્યું હોય કઈ બતાવ્યું હોય તો કહો અમને કે આ ખોટી રીતે બોલા. આ બોલતા નથી એનો મતલબ એમ નથી કે એ લોકો અમારી સાથે નથી, એ લોકો બોલી નથી શકતા. હું એડવોકેટ સતીશ જેડિયા, અરે એ તો એમને એડવાન્ટેજ લે છે. પટેલ નગર. એ તો એમને એડવાન્ટેજ લે છે. એક મિનિટ. પટેલ નગર મેમ્બર્સ ની કમિટી સોસાયટી છે, મીટિંગ છે, એમાં તમે મને ઇન્વાઇટ કરો છો એના માટે થેન્ક યુ. હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું બધા મેમ્બર્સને કે તમે થોડી વાર મને સાંભળો અને તમે કોઓપરેટ કરશો તો જે પ્રોબ્લેમ્સ માટે જ મને રાખવામાં આવેલો છે. દેડિયાભાઈ તમારી દેડિયાભાઈ તમારાથી અમને કોઈ ઓબ્જેક્શન નથી. મને એ આ કંપની સોસાયટીની જે પ્રોસિજર થઈ રહી છે એ ખોટી રીતે થઈ રહી છે કે અમને કોઈને જણાવવામાં નથી આવ્યું કે અમે લોકો પરમારને આપણે કાઢી રહ્યા છીએ અને આપણે બીજા એડવોકેટને અપોઇન્ટ કરી રહ્યા છીએ. એ કોઈ જાણકારી અમને નથી આપી. આ સડનલી અમને આ મિનિટ્સ ઓફ ધ મીટિંગ લખીને એની અપ્રુવલ માંગી રહ્યા છે. એમને પરમારને સાહેબને કાઢવાનું કારણ શું છે, એ પીએમસી ને માટે રિમૂવ કરવાનું શું કારણ છે, કોઈ જવાબ જ નથી, કોઈ નથી કઈ બતાવતા. ને એમને સીધી અપોઇન્ટ એટલીસ્ટ અમારી સોસાયટીમાં સર્ક્યુલર પણ કરવું જોઈએ કે ભાઈ અમે આપણને જો એક એડવોકેટ જોઈએ છે તો આપણે કોઈની કોઈ જાણકારીમાં હોય તો તમે રેફરન્સ આપો, એવી વાત થવી જોઈએ. એઝ એ કમિટી આપણે મેમ્બર ઓફ ધી સોસાયટી છે, આ બધાને સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. એકલા એવી રીતે કામ ના થઈ જાય ને બધું. આમાં કોઈ ખોટું છે તમે કહો સાહેબ? હા અંકલ, તમારી વાત સાચી છે, પણ એના માટે તમારી વાત આપણે સાચી છે તો તમારે પણ ઓપ્શન છે એના માટે સ્ટેપ્સ લેવાના કે જે તમે કહો છો કમિટી આમ નથી કર્યું, આમ નથી કર્યું, એના માટે સ્ટેપ્સ છે, તમારી પાસે રેમેડીઝ અવેલેબલ છે. તો તમે એની રેમેડીઝ એક્સરસાઇઝ ના કરી હોય અને મીટિંગમાં આપણે આમ કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ટરપ્રેશન થશે તો રાઈટ ટાઈમ તમારું કોઈ દિવસ આગળ કામ નહીં વધે. એટલે હું તમને 10 મિનિટ રિક્વેસ્ટ કરું છું, પ્લીઝ મને બોલવા દો. પછી તમે તમારે જે ટાઈમ પરમિટ થતું હશે એઝ પર એજન્ડા તમે આગળ વધશો, મને કોઈ વાંધો નહીં. હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું. પણ મને તમારી સાથે ઓબ્જેક્શન હોય તો. હેલો સતીશભાઈ, અને સતીશભાઈ સાથે જો ઓબ્જેક્શન છે તો હવે આઇટમ નંબર 4 ને એક્સપ્લેન કરવા માટે મને રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવી છે. સતીશભાઈ, જે આઇટમ નંબર 4 છે
એ એક ડ્રાફ્ટ રિઝોલ્યુશન છે બીએમસી ની નોર્મ્સ પ્રમાણે. તમે ઓલરેડી રિઝોલ્યુશન પાસ કરેલા છે અલગ અલગ, પણ એ રિઝોલ્યુશન બીએમસી ની લેંગ્વેજ પ્રમાણે જે એ લોકો એક સ્ટાન્ડર્ડ ડ્રાફ્ટ બનાવેલો છે, એ સ્ટાન્ડર્ડ ડ્રાફ્ટ પ્રમાણે તમારે એક રિઝોલ્યુશન આપવું પડે છે, જે તમે એમની સોસાયટીની તમે ઓલરેડી તમે અપોઇન્ટમેન્ટ માટે પ્લસ એનું રિઝોલ્યુશન જે છે એના પરસ્યુએન્ટમાં જ આ રિઝોલ્યુશન ફક્ત બીએમસી ની એક સ્ટાન્ડર્ડ લેંગ્વેજ છે, એના માટે આ પ્રમાણે તમારે આપવું પડે છે. અને હવે સવાલ આવે છે કે તમારે આ ટાઈમે જે પ્રમોદભાઈ નો સવાલ છે કે આવી રીતે તમે કેમ કરો છો. હવે જે કમિટીએ મને જણાવ્યું છે ને જે મને ડેટા અવેલેબલ કરવામાં આવ્યું છે, તમે 2019માં એમ બિલ્ડરને અપોઇન્ટ કરેલો છે. બરાબર. જે હું ડેટ્સ વાંચું છું, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટ્સ છે, તો તમે 2018 એપ્રિલમાં તમે ટેન્ડર ઇન્વાઇટ કરેલો. એ ટેન્ડરના રિસ્પોન્સમાં જે ટેન્ડર આવેલા એનામાંથી તમે સિલેક્ટ કરેલા, અને એ સિલેક્શનમાંથી જે પ્રેઝન્ટ ડેવલપર છે એનું 14 ડિસેમ્બર 2018 અને 26 માર્ચ 2019 એ દિવસે તમે રિવાઇઝડ ઓફર મંગાવેલી. રિવાઇઝડ ઓફર 16 જૂન 2019 એ તમે એસજીએમ એ તમે અપ્રૂવ કરેલું છે, અને એમાં ગાયકવાડ કરીને જે ઓફિસર છે જેમને આના માટે ઓથોરાઇઝ કરવામાં આવેલા, એની પ્રેઝન્ટમાં તમે રિઝોલ્યુશન પાસ કરેલું છે, અને એનઓસી સોસાયટી રજિસ્ટ્રાર પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. એટલે તમે જે કહો છો કે 3 જાન્યુઆરી 2009 ના હિસાબે જે પ્રોસિજર તમારી હોય છે, જે નોર્મલી અત્યારે પ્રોસેસ ચાલે છે, એ પ્રમાણે તમારી સોસાયટીએ ઓલરેડી પ્રોસેસ કરેલી છે. અને મારા નોલેજ પ્રમાણે મને જે ડિટેલ્સ આપવામાં આવી છે એ પ્રમાણે ઈ રિઝોલ્યુશનને અત્યાર સુધી કોઈ ચેલેન્જ નથી કર્યું, અથવા તો કોઈ પણ મેમ્બરે જે એનઓસી ઇસ્યુ કરવામાં આવેલી છે એને પણ કોઈ લીગલ રેમેડી અવેલેબલ છે એ પ્રમાણે કોઈ ચેલેન્જ નથી કર્યો. એ હિસાબે એની જે અપોઇન્ટમેન્ટ છે એને સફિશિયન્ટ ટાઈમ થઈ ગયો છે, અને એના માટે સોસાયટીએ તમારી જે કમિટી છે એમને ડિસ્કશન કર્યું કે હવે ફર્ધર ડિલે કેમ ન થાય. તો એના માટે જે ડેવલપમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ નું ડિસ્કશન થયું હતું કે 9 માર્ચ 2020 થી સ્ટાર્ટ થયું હતું, એના પછી 12 મે 12 ઓક્ટોબર 30 જાન્યુઆરી અને છેલ્લે 14 માર્ચ. આ 5 ઇમ્पोर्टेंट डेट છે अलग अलग एबीसीडी है, ये चारों अपने में आता है, अपने में ही है। अलग अलग समय दिए हाँ बट वो इसी में ही है, मेन एंट्री इधर से ही है, ચેન્જ કરીને approve કરવામાં આવેલા છે एक ही चीज है। કમિટીના લેવલ ઉપર વિથ ડેવલપર. એ પ્રમાણે હવે તમારે આગળ જ્યારે વધવાનું છે તમારી પાસે એક જ ઓપ્શન हाँ છે ये दोनों કે लाइन either जाएंगे। તમે વેઇટ કરો ત્યાં સુધી સિચ્યુએશન हाँ? ચેન્જ ના થાય, કોરોનાની એકદમ કમ્પ્લીટલી Capable नहीं है मतलब? અને બીજું ઓપ્શન તમારું અવેલેબલ છે કે આપણે समझ सकते हैं ना? એક્સપેરિમેન્ટ તરીકે તમે ગ્રુપ મીટિંગ સ્ટાર્ટ કરેલી છે જે ગવર્નમેન્ટના कोई एक बात आप समझाओगे तो समझा, कैपेबल नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हो? स्मार्टफोन यूज करता है तो क्या उसको वो नहीं समझ में आएगा? वो प्रोडक्ट वो हम फिक्स नहीं रहते यहाँ पर। वो ठीक है, आपको इनको सिखाना है और वो बोले चेंज होंगे तो हमारा ड्यूटी है, हम उनको सिखाएंगे। अभी इनका हाँ सारे मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बोलने देंगे तो सबको चांस भी मिलेगा, और जो बाकी मेंबर्स नहीं बोल रहे हैं उसका मीनिंग आप ये मत निकालो कि भाई सिर्फ आपको ही मिल रहा है। इस तरह आप जो आप कर रहे हो काम उससे दूसरे को इंटरफेरेंस हो रहा है, और जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, और फिर आप ही ऑब्जेक्शन लोगे कि भाई हमें पता नहीं डिसीजन कैसे लिया गया। सोसाइटी अगर है तो सोसाइटी सारे कोऑपरेशन से नॉर्मली चलनी चाहिए, और उस कोऑपरेशन से ये पर्टिकुलर जो सर्कमस्टेंसेस है अभी उस सर्कमस्टेंसेस में अगर सारे मेंबर्स का कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है काफी उसकी हालत खराब है, और उस आपने अगर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का स्टडी किया होगा तो ज्यादातर प्रॉब्लम मेंबर्स के इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से हुआ है, ना कि सोसाइटी और डेवलपर की वजह से। अगर सोसाइटी अपनी डिसीजन प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं करेगी, और जिस तरह हमारी सोसाइटी या नॉर्मली कोई भी सोसाइटी में इसी तरह एक बिहेवियर पैटर्न है, अप्रोच है, वो चलते रहता है, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का काम अटक जाता है। उसकी वजह से अगर एज ऑन डेट ऐसा है कि आपका मार्जिन डेवलपर्स का जो पहले की कंपैरिजन में काफी कम है, और उस सिचुएशन में अगर थोड़ा भी डिले हो गया तो आपका प्रोजेक्ट या कोई भी सोसाइटी का प्रोजेक्ट एज ऑन डेट इस तरह अटक सकता है। यानी आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सोसाइटी के लिए एक मैकेनिज्म रेडी कर सकते हो आप कि जो भी ऑब्जेक्शंस हैं या आपके सजेशंस हैं उसको किस तरह डील किया जाए, उसके लिए एक साथ मिलकर आप एक मैकेनिज्म करो, और वो मैकेनिज्म अगर रेडी करते हो तो सारे
आपके इश्यूज हैं या सजेशंस हैं उसको प्रॉपरली आप डील कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने सोसाइटी का डेवलपर अपॉइंट कर दिया है और उसको आप चैलेंज नहीं करो, एक साइड से आप चैलेंज नहीं करो और दूसरी तरह से आप इस तरह सिर्फ इंटरफेरेंस और ऑब्जेक्शन लेते रहेंगे तो इसका कोई एंड नहीं आएगा। इसकी वजह से इंटरनल डिस्प्यूट्स बढ़ेगा, एनिमिटी बढ़ेगी और इसका बेनिफिट डेवलपर को या थर्ड पार्टी को होगा। आप लोग इतने साल से साथ में रहे हैं, राइट? नॉर्मली क्या होता है कि सोसाइटी की मेंटालिटी में आज तक इस तरह के डिसीजन कभी लिए नहीं जाते, तो सडनली अगर रीडेवलपमेंट का या कोई इश्यू आता है तो पहले के जो पास्ट में आपकी एनिमिटी रहेगी या कोई भी छोटे मोटे इश्यू रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली मेंबर्स जो रहते हैं वो ये प्लेटफॉर्म का या इस तरह का जो इवेंट्स आते हैं उसमें उसका यूज करते हैं कि अपनी पुरानी जो रंजिश है उसको रिवेंज लेने के लिए इसका यूज करते हैं। ये ज्यादातर सोसाइटीज में ये देखा गया है और इस तरह अगर आप अपनी ये सोसाइटी में भी आप अगर ऐसा करेंगे या ऐसा होने देंगे तो आपको अल्टीमेटली प्रॉब्लम होने वाला है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जब आप मुझे अपॉइंट कर रहे हैं तो आपकी सोसाइटी में एज पर लॉ या एज पर जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आपको जो चाहिए वो मैं ट्राई करूंगा कि मैनेजिंग कमेटी को भी बताऊंगा और मैं आपको इंश्योर करके दूंगा कि जो जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए उस तरह की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको जितने भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उसको निकालने के लिए मैं हेल्प करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी ऑब्जेक्शन लेना है ऑलवेज आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए और ये जरूरी है कोई भी सोसाइटी में। अगर ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं तो टोटली वन साइडेड हो जाता है, काम होने लगता है और उसके साथ काफी सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो जिनको भी नॉलेज है उनको एक रिक्वेस्ट है कि उनको नॉलेज प्रॉपरली वो यूज करें और उनका प्रॉपर वे में उसको ये करें। अभी जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस चल रही है उसमें अभी मैं प्रेजेंट एजेंडा पे आता हूँ कि आप ये एजेंडा आप समझो आप अप्रूव करते हो तो आपको नुकसान क्या है। एक मिनट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपका बात एक हो गया, अभी मेरे को दो तीन मेरा बात नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप बोलिए। हाँ यस, मेरे को ये जानना है कि ये जो नोटिस निकाला गया 7 तारीख को लीगली है? 3 दिन की नोटिस देनी चाहिए एज पर द स्पेशल जनरल मीटिंग। 3 दिन की 7 तारीख की नोटिस निकालते 9 तारीख को हो सकती है मीटिंग? मैं आपको पूछ रहा हूँ। सर 2 तारीख को वही है और मैंने एक्नॉलेजमेंट देखा है। नहीं 7 तारीख को देखा है प्रमोद भाई। अगर आपको ऑब्जेक्शन है एक मिनट सर, एक मिनट। लेटर आया। हाँ तो ये आपको इन्होंने नोटिस जो है ये नोटिस सारे मेंबर्स को 2 तारीख को इन्होंने सर्कुलेट किया है प्लस व्हाट्सएप पे भी किया है। मैंने इनको एक लिंक भेजा था गाइडलाइंस करके, उसमें आपने देखा होगा तो इकोनॉमिक टाइम्स और माय टाइम्स ऑफ इंडिया उसमें भी एक गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया है कि व्हाट्सएप, ईमेल या हैंड डिलीवरी इज परमिटेड। आज की कोरोना में आप अगर स्ट्रिक्टली आप सिर्फ रूल्स को खाली फॉलो करना है, ऑब्जेक्शन लेने के लिए ऑब्जेक्शन लेना है तो आपके पास ऑब्जेक्शन है और आपके पास उसके लिए रेमेडी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। और इन्होंने रजिस्ट्रार को भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। इन्होंने ये रजिस्ट्रार को भी इन एडवांस सबमिट करके दिया है जिसका इनके पास एक्नॉलेजमेंट है। आपको चाहिए तो उसकी कॉपी आप ले सकते हो। और ये जानना ये क्या है, ये क्या है? 7 तारीख का लेटर है, ये क्या है? सर आप पहले आप पढ़ो वो सर। आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो मैं आपको इससे बेटर ऑप्शन देता हूँ ऑब्जेक्शन लेने के लिए। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्शन क्या लेते हैं? लेना है तो स्टडी करो। नहीं ऑब्जेक्शन देखिए सर, सॉरी का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ प्रमोद भाई, आपकी एज का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने आपकी एजीएम की मिनट्स भी देखी जिसमें आपने काफी सारे ऑब्जेक्शन लिए थे, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इस तरह के अगर मेंबर्स पॉजिटिव अगर क्वेरीज लेते हैं तो सोसाइटी के इंटरेस्ट में है, लेकिन अगर आप जिस तरह के ऑब्जेक्शन आप ले रहे हो उसका कोई मीनिंग नहीं है सर। तो मैं अभी प्रोसीड करता हूँ। टाइम सर कम है, आपको चाहिए तो मैं इधर बैठा हूँ, शाम को आप फिर से हम लोग बैठते हैं, आपके 1000 ऑब्जेक्शन रहेंगे, मैं पूरी रात बैठने को रेडी हूँ। लेकिन अभी बाकी के मेंबर्स को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते इस तरह, और बाकी के मेंबर्स को आप इस तरह रुका नहीं सकते। नहीं आपने प्रमोद भाई, एक मिनट प्रमोद भाई, करेक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा प्रमोद भाई, किसी को नहीं कर रहा हूँ। डोंट यूज द प्रमोद भाई,
प्रमोद भाई, मेरा रिक्वेस्ट है आपको, ये वकील साहब जो बोल रहे हैं वो सुन लो। वकील साहब जो भी बोल रहे हैं वो सुन लो, उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्शन लेना है वो बाद में ले, ठीक है? मेरे को इतना ही कहना है। वो जो बोल रहे हैं वो सुनो। अच्छा, थैंक यू सर। પ્રમોદ અંકલ ટેકનિકલ પર્સન આપણી સાથે આવ્યા છે, એક ટેકનિકલ પર્સન આપણી સાથે આવ્યા છે જે આપણા બધા કરતા મેમ્બરો કરતા વધારે નોલેજ ધરાવે છે. એટલીસ્ટ એક વખત સાંભળી લો સર કે શું કહે છે, પછી જે પણ ઓબ્જેક્શન તમે એક વખત કમિટીને આપી દો. આપણા કરતા આપણા બધા મેમ્બરો કરતા એની પાસે ટેકનિકલ નોલેજ વધારે છે આ વસ્તુ. લેટ ધેમ સ્પીક ના. હરિણી સાહેબ, પડિયા સાહેબ, તમે એ કર્યું. ગોપાલ સાહેબ, તમે આપણી પાસે ટાઈમ ઓછો છે, પહેલા કમ્પ્લીટ કરવા દો. જે બી મેમ્બરને પર્સનલી ડિસ્કશન કરવું હોય આપણે સોસાયટીમાં સ્પેશિયલ સેશન રાખીએ અને તમે કહેશો એ ટાઈમે આવીશ ને, એના માટે હું ચાર્જ નહીં કરીશ સેપરેટલી. એટલે તમે આવજો, હમણાં તમે આ પૂરું કરવા દો. પણ આમાં કોઈને ઓબ્જેક્શન હોય તો શું કરવાનું? આમાં કદાચ ઓબ્જેક્શન હોય તો શું કરવાનું? ઓબ્જેક્શન આપણે બધા પાર્ટી કરવાનું, ખાલી સાંભળવાનું બસ. ઓબ્જેક્શન નહીં, તમે મારી વાત સાંભળો. તમારી પાસે એક મિનિટ right છે. વાત સાંભળો. તમે પરમિશન આપવાની નહીં. પ્રોપર એનો કરવો જોઈએ. હું તમે એક મિનિટ વધારે નહીં આજે બોલું. એક મિનિટ વધારે નહીં બોલું. હા, બોલો. હું શું કહું છું સાંભળો. અત્યારે ટોટલ આપણે કેટલા મેમ્બર અત્યારે ઝૂમ મીટિંગમાં ઉભા છે બોલો. તમે કહો કે આ મીટિંગ બરાબર છે તો અમને પાસ કરો તો ન ચાલે ને? એમ કાલે પૂછ્યું તમને. કેમ બરોબર નથી? તમે અરે ભાઈ, એમનું બોલવાનું તો પહેલા ફિનિશ થવા દો. ચાલો મનીષભાઈ, આપણે બીજું સાઈડમાં મૂકીએ. તમે સમજો કેમ બરોબર નથી. કોઈનું સાંભળેલું કરીને આપણે ચલાવતી રહેવાનું, ચાલુ ગાડીમાં ચડી જવાનું. મનીષભાઈ, તમને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, આવી રીતે નો ચાલે સાહેબ. તમે મને ટેકનિકલી સમજાવો કેમ નો ચાલે. ચાલો બતાવો. નહીં, ટોટલ કેટલા મેમ્બર છે? તમે પોઈન્ટ નહીં, તમે એ બધા છોડો. તમે સવાલ નહીં કરો, તમે તમારો જે જવાબ છે ને કેમ બરોબર નથી એ તમે કહો મને. ચાલો. કયો સવાલ? અમને એ ખ્યાલ નથી સાહેબ. અરે ભાઈ, એ ખાલી ઓબ્જેક્શન લેવા માટે ઓબ્જેક્શન લે છે. એવું ના કરાય સાહેબ. હવે હું આગળ વધું છું. થેન્ક યુ. ગો હેડ પ્લીઝ. હું ઇલજીભાઈ બોલું છું. અરે ભાઈ, તમે પછી બોલો, એમને બોલવા દો, પહેલા એમને ફિનિશ કરવા દો. અંકલ, તમારો ટાઈમ છે ને, આપણે બોલો 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 અંકલ બોલો. કે મીટિંગ ચાલુ થવા દો. પટેલ નગરમાં અમે બધા હોશિયાર રહીએ જ છીએ. એવું નથી કે ભાઈ હોશિયાર છે, અમે હોશિયાર જ છીએ અને પૂરી જાણકારી છે અમને રીડેવલપમેન્ટની. મારી વાત સાંભળો, એટલે કોઈ વચમાં અત્યારે ખલેલ ન કરે. મહેરબાની કરી મીટિંગ ચાલુ થવા દો. મીટિંગ પૂરી થાય પછી તમારે જે બોલવું હોય એને બોલવા દો. પહેલા એને પણ સાહેબ બોલવા દો, આપણે જાણકારી લેવા દો. પહેલા બધાની જાણકારી પૂરી આવી જાય, પછી એના પછી જેને બોલવું હોય એ બોલી શકે છે. એટલી મારી વિનંતી છે. વકીલ સાહેબ, તમે આગળ વધો. હવે આપણે જે થર્ડ પોઈન્ટ છે, મેં તમને સમજાવ્યું કે બીએમસી ની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે પહેલા શું હતું કે એ લોકોએ 79A ની એનઓસી વગર એ લોકો અલાઉ નહોતા કરતા, પ્રપોઝલ રીડેવલપમેન્ટ ની એસેપ્ટ નહોતા. એટલે ઘણી વખતે એવું હતું કે 79A ની પ્રોસિજર છે એ મેન્ડેટરી એઝ અ લો મેન્ડેટરી નથી, ખાલી ગાઈડલાઇન્સ છે. એટલે ઘણા લોકોએ ઓબ્જેક્શન લીધું, એટલે બીએમસી એને અલાઉ કર્યું કે ઠીક છે, અમે 79A ની એનઓસી ની અમે ઇન્સિસ્ટ નહીં કરીએ, પણ જે રિઝોલ્યુશન જોઈએ છે એ પર્ટિક્યુલર ફોર્મેટમાં તમે અમને રિઝોલ્યુશન આપો અને એ રિઝોલ્યુશન તમારી એમાં એસજીએમ માં તમે અપ્રૂવ કરીને આપો. એટલે આ પર્ટિક્યુલર ફોર્મેટ તમે બીએમસી ના રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમે આ એજન્ડા છે એ તમે અપ્રૂવ કરવા માટે તમે આજે એજન્ડા પર પોઈન્ટ કીધેલું છે. હવે એનું એક્સપ્લેનેટરી નોટ બી મેં એમને બનાવીને આપેલી છે. જે તમે ક્વેશ્ચન પૂછો છો એ તમારા કમિટી મેમ્બરે ઓલરેડી ક્વેશ્ચન્સ બધા પૂછેલા અને બીજા બી મેમ્બર્સ જે હતા એમને ક્વેશ્ચન પૂછેલા અને એ ક્વેશ્ચન્સના આધારે અને એમના ઇન્ટરેક્શનના હિસાબે એક્સપ્લેનેટરી નોટ બનાવેલી. જે તમારે નોટ લગભગ તમારા જે બી ઓબ્જેક્શન બી પેલા અમુક લોકોના આવેલા છે, લેટર્સને જોયા છે, બધા ઓબ્જેક્શનના આન્સર્સ ઓલમોસ્ટ આ એક્સપ્લેનેટરી નોટ છે જે આ તમારી કમિટીની આ એજન્ડા સાથે મોકલવામાં આવેલી છે એમાં કવર થાય. એટલે આપણો પોઈન્ટ નંબર જે બીએમસી નું રિઝોલ્યુશન છે, હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે તમે કરી શકો છો. હવે ક્વેશ્ચન એ આવે છે જ્યારે તમે રીડેવલપમેન્ટ નું ડિસિઝન લ્યો છો તો ક્વેશ્ચન એ આવે છે સાહેબ કે ગુજરાતી ચાલશે કે હિન્દી કરું? હિન્દી કરું. हिंदी 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 करो. हिंदी हिंदी में बोलो सर. यस सर.
तो रीडेवलपमेंट का जब भी इशू आएगा तो सर पहले हम लोग को ये देखना है कि जो कमर्शियल टर्म्स आपने डिसाइड की थी वो सारे ने ऑब्जेक्ट 29% टेंडर का ऑफर था और बाकी जो अलग अलग टर्म्स थी वो आपने ऑलरेडी एग्री कर लिए हुए हैं, या तो और एटलीस्ट 79 की नेटफ्लिक्स का जो रिजोल्यूशन है उसके हिसाब से वो रिजोल्यूशन पास हुआ दिख रहा है और उसको आज तक सोसाइटी के रिकॉर्ड के हिसाब से किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, इन द सेंस कि किसी ने भी उसको चैलेंज नहीं किया है। तो सफिशिएंट टाइम अवेलेबल था, जिनको जिनको जिस तरह का ऑब्जेक्शन है और इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन अगर किसी के पास रहता तो नेचुरली उनके पास लॉ ने एक रेमेडी दी हुई है, कानून ने एक रेमेडी दी हुई है, उसका उन्होंने चैलेंज किया रहता। वो चैलेंज नहीं किया है तो सारे बाकी के मेंबर्स हैं उनको मान के चलना चाहिए कि इस तरह के जो ऑब्जेक्शन है सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए या तो अपने को एक हीरो दिखाने के लिए या एक कुछ तरह का लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान उनको भटकाने के लिए इस तरह का करते हैं बाकी की सोसाइटी में। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपकी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता होगा और सारे मेंबर्स जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है या मैं एज्यूम करता हूँ। तो मेरा सजेशन है कि आपका जो बीएमसी का रेजुलेशन है वो आपको एडॉप्ट करना चाहिए। उससे हम लोग को नुकसान क्या है, हम लोग को आइज ऑन डेट बीएमसी में जो डेवलपर सबमिट करेगा उसका आज बिफोर डीए लेने का रीजन क्या है, मैं आपको सिंपल थोड़े वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ। नॉर्मल प्रोसीजर ऐसा है कि डीए आप साइन करो, प्लान अप्रूव करो और फिर ये सब प्रोसीजर स्टार्ट होता है। लेकिन अब एज ऑन डेट जिस तरह आपकी सोसाइटी का आज मैंने देखा या नॉर्मली कोई भी सोसाइटी में है, ये जो सारा प्रोसेस है 2-3 महीना लगता है और एज ऑन डेट फिजिकल मीटिंग लेना पॉसिबल नहीं है। जूम मीटिंग से शायद पहली मीटिंग में एक मीटिंग में पॉसिबल नहीं भी होगा और डायरेक्टली इस बड़े सब्जेक्ट पे अगर जूम मीटिंग भी लेना शुरू करेंगे तो एडवाइजेबल नहीं है। इसके लिए जूम मीटिंग का थोड़ा लोगों को प्रैक्टिस हो जावे, आइडिया हो जावे, उसके बाद अगर वो सब्जेक्ट्स लेते हैं थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में टुकड़े में वो अगर लेते हैं तो वो पॉसिबल हो सकेगा। तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप स्टार्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट ने भी वो अलाउ किया है तो आप स्टार्ट करो, लेकिन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स से स्टार्ट करो ताकि लोगों को एक फैमिलियरिटी आ जाए, लोग इससे जानना शुरू करें कि जूम मीटिंग में कैसे किस तरह अपने को अप्रूव करना है और किस तरह का कितना लिमिटेशन है हमारे। एज ऑन डेट अगर ये प्रपोजल बिल्डर सबमिट करता है तो नुकसान या रिस्क है वो बिल्डर को ज्यादा है, सोसाइटी को नुकसान नहीं है क्योंकि मेन जो डॉक्यूमेंट है वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और रजिस्टर नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपर को राइट नहीं। अगर एक्सट्रीमली टेक्निकल लैंग्वेज में देखेंगे तो आपका रिजोल्यूशन अप्रूव हो गया है, इसका मतलब सोसाइटी और बिल्डर दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में, एक कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में एग्जिस्टेंस में है और वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड को बाइंडिंग है, भले ही फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करना बाकी है। ये लीगल पोजीशन है, लेकिन हम लोग एक्सट्रीम लीगल पोजीशन में नहीं जाते हैं, ऐसे ही जनरल बात करते हैं। तो एज ऑन डेट डेवलपर जो है खुद की फेवर में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाए बिना वो आपके प्रपोजल है वो भी सोसाइटी के नाम से सबमिट करने के लिए रेडी है और उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो बीएमसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, अथॉरिटीज की रहेगी, तो सारी कंडीशंस अप्लाई करने के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी है, वो भी उसके लिए पेमेंट भरने के लिए रेडी है। तो इस सिचुएशन में उतना टाइम हमारा बचेगा, क्योंकि अगर हम लोग डीए और ये सब प्रोसीजर में जाएंगे तो कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का प्रोसीजर लग सकता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। और एज ऑन डेट ऐसा लग रहा है कि और 6 महीने तक सिचुएशन नॉर्मल होने का कोई चांस नहीं। तो क्या सोसाइटी तब तक वेट करे या नहीं करे? तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो हम लोग वेट करते रहे या आगे बढ़े। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इससे नुकसान सोसाइटी अगर बिल्डर को रिक्वेस्ट करती है और बिल्डर ने अगर ये एग्री कर लिया है और वो खुद पेमेंट भरने के लिए रेडी है तो सोसाइटी के नाम से प्रपोजल सबमिट होने जा रही है। जो भी प्रपोजल उनको अप्रूवल्स लेके आएंगे, बेसिक अप्रूवल्स लेके आते हैं, और इस सिचुएशन में कब क्या होगा वो किसी को आइडिया नहीं है। सोसाइटी रीडेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो रिस्क रहता है अप्रूवल रिलेटेड रिस्क रहता है, और अगर अप्रूवल्स ही हम लोग फर्स्ट लेवल पे लेके आ रहे हैं तो ये इन द सेंस बेटर ऑप्शन है आपके लिए। सोसाइटी के लिए बेटर है कि अभी डीए भी साइन नहीं हुआ और उसके पहले अगर अप्रूवल लेके आ रहे हैं, बेसिक अप्रूवल्स आपके सामने आ रहे हैं और फिर आप डीए साइन कर रहे हो, तो इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या हो सकती है? क्योंकि सोसाइटी में डिले होने का या प्रॉब्लम्स होने का वन ऑफ द रीजन ये रहता है कि अप्रूवल्स टाइम पे नहीं लेते या अप्रूवल्स प्रॉपर नहीं लेते, और अगर वो अप्रूवल ही पहले लेके आ रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन क्या ले होना चाहिए?
तो जो भी सोसाइटी के इंटरेस्ट में या मेंबर्स के इंटरेस्ट में जो भी आदमी सोच रहा है, एक जनरल लेमैन अगर सोच रहा है, तो वो पहले ये देखेगा कि मेरा रिस्क क्या है। तो अगर आपको रिस्क नहीं है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। सेकेंडली, हम लोग दूसरी साइड से सोचते हैं कि अगर रिस्क है तो हमको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो कमिटी या तो सोसाइटी वो स्टेप्स ले रही है या नहीं ले रही है, वो हम लोग को देखना है। तो ऑलरेडी आपके एजेंडा में लिखा हुआ है कि डेवलपर से एक रिक्विजिट लेटर हम लोग दे देंगे, और जो अप्रूवल हम लोग दे रहे हैं वो एक कंडीशनल उनको अप्रूवल दे रहे हैं। भाई आप स्वयं से कंडीशन के सब्जेक्ट टू दैट कंडीशन आपको ये अप्रूवल दी जा रही है। यानी एज ऑन डेट रीजनेबल जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो आपकी सोसाइटी की कमेटी ले रही है। तो उसमें आपके जो भी मेंबर्स जिनको नॉलेज है उनको चाहिए कि वो लोग आगे आवे कि और कोई कंडीशन ऐड कर सकते हैं क्या, सब्जेक्ट टू आपकी जो टर्म्स एग्री हुई है वो, और ये वो टर्म्स जो है वो रिजनेबल होनी चाहिए कि सामने वाला जो पैसा आपको इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके फेवर में एक भी कागज एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उसके बाद भी अगर वो इतना रिस्क लेने को रेडी है, तो क्या सोसाइटी की और मेंबर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसको कोऑपरेट करें? क्योंकि बेनिफिट दोनों को होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को बेनिफिट होने वाला है और दूसरे को बेनिफिट नहीं होने। जब सिचुएशन दोनों के म्यूचुअल में है, दोनों के हित में है, तो फिर हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और आज ऐसा कोई भी मेंबर आपका हो जो गारंटी देता हो कि भाई मैं ये खोलूंगा तो ऐसा ही होगा, या ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, आज तक ऐसे कोई गारंटी दे नहीं सकता है। हम लोग को एंटीसिपेशन करना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। हमारी लिमिटेशन है सोचने की, और वो सोचने के हिसाब से हमने जो एज्यूम किया होगा कि आगे आगे क्या हो सकता है, उसके हिसाब से नॉर्मली एग्रीमेंट बनता है। वो एग्रीमेंट बनने के बाद भी आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल है कि इतने सारे लिटिगेशन हो रहे हैं, इतने सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं और कोर्ट में सालों से अटक रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एग्रीमेंट प्रॉपर किया या बरोबर डॉक्यूमेंटेशन किया तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सर ऐसे नहीं होता है। अगर दोनों पार्टीज प्रॉपरली एक दूसरे को कोऑपरेट करके, दोनों में जब तक ट्रस्ट रहेगा, काम आगे चलते रहेगा। सामने ऑब्जेक्शन लेना है वो भी सही है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है वो भी बात सही है, लेकिन उसका एक तरीका रहेगा। उसको सामने वाले का रिस्पेक्ट को हर्ट किए बिना अगर आप काम करते हो तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके इधर नहीं हो सकता है, या ये दुनिया में नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतने सारे लोगों की सोसाइटी है, इतनी सारी अथॉरिटीज अवेलेबल है, और पहले जैसा नहीं है कि भाई आप राम राज चल रहा है। आपके यहाँ पे जो हम लोग पॉसिबल कर रहे हैं, इतनी सारी ट्रांसपेरेंसी की आपकी स्टेप्स लेते जा रहे हैं। अगर ये पॉसिबल होता तो कम्युनिटी खुद भी ये एग्जीक्यूट करके जाती थी। तो आपको जिन लोगों को ऑब्जेक्शन लेना है वो क्या करते थे, कोर्ट में जाते थे। और आज की तारीख में कोर्ट की हालत आप देख रहे हो कि क्या करना। तो कमिटी की अगर इंटेंशन इस तरह होती कि आपको बिना बताए आगे बढ़ना है, तो ये सारे स्टेप्स लेने की जरूरत ही क्या है। पहले क्वेश्चन, नॉर्मल जो आदमी है, रैशनल आदमी है, वो ये सोचेगा कि ये सारे स्टेप्स लेने की इनको जरूरत क्या है। अगर वो सममुखत्यारगिरी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो डिक्टेशन दे रहे हैं, या हम वो खुद ही बोल रहे हैं हमको खाली सुनना ही है, अगर ऐसा होता तो ये सारा नाटक करने की जरूरत ही नहीं रहती। वो डायरेक्ट करके आगे बढ़ सकते थे, और जिन लोगों को ऑब्जेक्शन लेना है वो लेते रहते थे और कोर्ट में वो अटकते रहता था। उनके पास सफिशिएंट रिजोल्यूशन अवेलेबल है, ऑलरेडी 79A का रिजोल्यूशन अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ सकते थे। लेकिन फिर भी आपकी कमेटी ने डिसाइड किया कि नहीं, पहले ये सारा डिसीजन है तो कमेटी के लेवल पे नहीं, लेकिन जनरल बॉडी के लेवल पे होना है, और लोगों को जो भी उनके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो लोगों के साथ शेयर करनी है, और लोगों से जो भी रिजनेबल सजेशन आते हैं सोसाइटी के इंटरेस्ट में वो सुनना है। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। आपके पास सब्जेक्ट्स आप अगर कोई जितने भी लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं वो अगर बोल सकते हैं कि आज के बाद जितने भी ऑब्जेक्शन लेने हैं वो आज ही ले सकते हैं क्या, वो क्या उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लिया है वो कंप्लीट है क्या, आप उनको बोलो वो नहीं बोल पाएंगे। आप उनको टेक्निकल आप बोलो कि एक्चुअल लीगल में या आपके ऑब्जेक्शन कोर्ट में टिक सकते हैं क्या, तो नहीं टिक सकते। वो सिर्फ बात कर रहे हैं तो या तो इमोशन से बात कर रहे हैं, या उनको कोई पहले का पूर्वग्रह है, या उनका पहले का कमेटी के साथ जो भी पहले का झगड़ा होगा उसको ध्यान में रख के, उसको माइंड में रख के अगर आप कर रहे हो तो नेचुरली मैं आपको अभी से आपको बता रहा हूँ कि आपकी सोसाइटी प्रॉब्लम में आएगी। तो उसके लिए बाकी के 240 मेंबर्स में से खाली 5 मेंबर इस तरह बोलते रहते हैं और 240 होते रहते हैं, तो बाकी के 239 लोग सारे के सारे सफर करेंगे। मेरी पहले दिन आपको रिक्वेस्ट है कि सारे मेंबर्स जो हैं जिनको ये चीज मंजूर है वो भी आगे आके बोलने चाहिए, और जिनको लग रहा है कि ऑब्जेक्शन सही नहीं है या प्रॉपर नहीं है तो उनको भी बोलना चाहिए। क्योंकि इसी सिचुएशन में एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाती है कि सब लोग सुन रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ सब मान रहे हैं, एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाती है, और ये इंप्रेशन सोसाइटी के लिए खतरनाक हो सकती है। और मोस्ट ऑफ सोसाइटीज में ऐसा होता है कि 90% जो लोग रहते हैं जो ऐसे ही आंख बंद कर चलते हैं, तो आंख बंद करके नहीं चले और आपको इन्फॉर्मेशन मिले, इसी के लिए सारे स्टेप्स लेते जा रहे हैं।
और उसके लिए आपके इंटरेस्ट के लिए अगर ये बात हो रही है तो सवाल ये है कि कमेटी को भी या सोसाइटी में जो भी इस तरह के अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। आपको एक माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होता तो ये आपकी सोसाइटी में ये सब सिचुएशन हो रही है वो आती ही नहीं। अगर जो भी ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं उनके मन में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं शायद अपने आप, या उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि किस तरह, उनको पता नहीं कि किस तरह करे, उनके माइंड में कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको इस तरह का अगर सजेशन देना है तो आप वेलकम है, आप यहाँ पे आइए, हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको चाहिए तो हम लोग और एक सेशन रखेंगे इस तरह के पॉइंट्स पे डिस्कशन करने के लिए, और जो जनरल बॉडी के सामने ये सारे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके लिए एक टॉपिक रखिए, उसके लिए आप एजेंडा रखिए और फिर वो आप करिए। इस तरह आप हम लोग बच्चों के जैसा अगर करेंगे तो ये आप पॉसिबल नहीं। आज तक आप 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये की मैटर पे डिस्कशन करते होंगे और ये आज आपकी फ्लैट की वैल्यू 1.5-2 करोड़ तक की वैल्यू हो सकती है, या 1.25 करोड़ से 1.5-2 करोड़ तक की होने वाली चीज है। उसके लिए आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपका एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट आप रिस्क पे नहीं डाल सकते। इस तरह का डिस्कशन करके या इस तरह बचपनगिरी करके आप ये आपका खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जिसको भी ऑब्जेक्शन है, मैं तो बोलूंगा जो मेंबर्स नहीं है लेकिन फैमिली मेंबर हैं और उनके पास कुछ सजेशन है वो मेरे पास आए, मैं आपको टाइम दूंगा, उस दिन आप आओ और बैठो और बात करो। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं। डेढ़िया साहब 1 मिनट, मैं गिरीश गोहिल हूँ जी। मुझे आपसे ये पूछना है कि जो आप ये अभी टेम्पररी उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देने जा रहे हैं जी, उसके लिए डीए एग्रीमेंट साइन होना जरूरी नहीं है क्या? नहीं सर, जरूरी नहीं है। अब अगर आपने एक्सप्लेनेटरी नोट दिया होगा, वो मैंने पहले ही बोला ना कि रिस्क, बिल्डर एक रिस्क ले रहा है। ओके ओके ओके, टाइम बचाने तो के वी लिए आर नॉट एट रिस्क। हाँ, सोसाइटी मेंबर्स आर नॉट एट रिस्क। नॉट एट रिस्क। हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए, कभी भी कोई भी सिचुएशन में अलर्ट रहना ही चाहिए, ऑलवेज लैंड पे नहीं रखना चाहिए। लेकिन साथ में हम लोग को साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए म्यूचुअल इंटरेस्ट में जितना ट्रस्ट और फेथ अलर्टनेस के साथ रख सकते हैं उतना रख के अपने आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सिचुएशन में आपको अटकना नहीं चाहिए। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा सर, इसमें ऐसी सिचुएशन हुई है। डेढ़िया सर एक मिनट, ये जो बिल्डर अप्रूवल लेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन, हाँ, तो वो कौन से अप्रूवल लेगा यानी इस पे? राइट सर। सर अब इनिशियली जो है कंसेशन लेना रहता है कमिश्नर से, तो एज ऑन डेट शायद कमिश्नर के पास इतना बैकलॉग नहीं होगा और बीएमसी 2-3 साल से ऑनलाइन काम कर रही है। इवन लॉकडाउन में भी बीएमसी के जो डिपार्टमेंट्स है सब्जेक्ट टू उसकी अवेलेबिलिटी, वो ऑनलाइन में अप्रूवल का काम उन्होंने चालू रखा है, तो इसका एक बेनिफिट ले सकते हैं। सेकेंडली एक अभी गवर्नमेंट ने स्कीम दी हुई है, बिल्डर का भी इसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट है कि ये पहले अप्रूवल्स ले लेगा। समझो हम लोग एक एक्सट्रीम सिचुएशन में हम लोग सोचते हैं कि आपके सोसाइटी में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया और बिल्डर का शायद ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सारे मेंबर्स उनके अगेंस्ट हो जाए, तो बिल्डर क्या करेगा? फिर बिल्डर को रिकवरी के लिए जाना पड़ेगा, या तो आपसे म्यूचुअली रिकवरी करे, या तो आपसे सेटलमेंट करे, या तो फिर कोर्ट में जाए। ये ऑप्शन आता है सिचुएशन, वो हम लोग एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब डिस्प्यूट होगा। तो हमारा काम ये है कि इस तरह का सिचुएशन नहीं आवे और दोनों का जब कॉमर्शियल टर्म्स, आपकी बेसिक टर्म्स एग्री हो चुकी है, तो उसके दायरे में रह के हमको जो भी काम करना है हम करना चाहिए। और ये सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि हमको थोड़ा रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेस मुझे लग रहा है कि क्लियर होते होते नेक्स्ट जुलाई तक हो जाएगा। जो बिल्डर्स की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव होने में भी 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर बिल्डर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वो एक रिस्क लेने जा रहा है, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। उससे बेनिफिट सर ये होगा कि एक बार आपका अप्रूवल आ जाता है तो आपका तब तक डेवलपमेंट एग्रीमेंट का अप्रूवल का और प्लान का अप्रूवल का काम साइमल्टेनियसली चलेगा। ये फर्स्ट मीटिंग नहीं है, ये हमारा स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, या जो भी स्टेप। बिल्डर यानी ये बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं करेगा ना डायरेक्टली, अभी आप अप्रूवल दे रहे हो उसको, बेसिक तो बिल्डर बिल्डिंग प्लान अप्रूव कर देगा सर। यस, बेसिक इनिशियल अप्रूवल ले लेगा, लेकिन विद एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमने एक डॉक्यूमेंट प्लान सबको सर्कुलेट किया हुआ है, हो सकता है उसमें कुछ और चेंजेस होंगे। अभी एक्चुअली अरेंजमेंट ये था कि उनका पीएमसी आके और हमारा पीएमसी बैठ के लोगों को एक्सप्लेन करे, लेकिन अचानक ये लॉकडाउन आ गया, सारा प्लान फेल हो गया, तो इसके लिए ये सारा हम लोग को वर्कआउट करना पड़ रहा है।
तो हमारा ओरिजिनल प्लान ये है कि ये प्लान जो डीए का है साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, अप्रूवल्स का सोसाइटी के लेवल पे चलता रहेगा, प्लान्स जो दिए हुए हैं उसका भी अप्रूवल का काम चलते रहेगा। और एक बार इनिशियली आईओडी लेके आता है, फिर हमारे प्लान में जो सोसाइटी ने अप्रूव किया है, मेंबर्स ने जो अप्रूव किया है, मेंबर्स को जो फ्लैट देने वाले हैं, उस बिल्डिंग का अप्रूवल में कुछ चेंजेस करना है तो बिल्डर को हम लोग बोलेंगे भाई मेंबर्स की ये रिक्वायरमेंट है, आप इसको चेंज करो। तो बिल्डर ने को वो कंडीशन रहेगी कि भाई वो उसको उस तरह से फिर से अप्रूव करवा के लेके आएगा, उसको एडिशनल कॉस्ट आएगा बिल्डर को, नेचुरली उसका खर्चा आएगा बिल्डर को, और बिल्डर उसके लिए भी रेडी है, वो कंडीशन भी बिल्डर ने मान ली है कि ठीक है वो खर्चा आएगा तो भी मैं बेयर करने के लिए रेडी। जब अपने को बिल्डर हमारे पे इतना ट्रस्ट करने के लिए जा रहा है तो फिर हम लोग का जिम्मेदारी बन रही है कि 2 स्टेप्स हम लोग आगे बढ़े। आपके इस तरह के और भी क्वेश्चन है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूछो। इस तरह का क्वेश्चन रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन स्टडी करके आपको आने चाहिए और पूछने चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन किसी भी मेंबर के पास है तो मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके लिए अगर हमारा टाइम कंप्लीट हो जाता है तो फिर से हम लोग मीटिंग एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारे पास और 1 घंटा हम लोग एक्सटेंड करने के लिए अपने पास राइट रहता है, तो हम लोग वो ट्राई करेंगे कि करेंगे। या आपके पास आज पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप मुझे भेज सकते हैं, जिसका भी रिजनेबल सजेशन होगा कमेटी ये सुनने के लिए रेडी है। रेडी है। हाँ, અત્યારે રેઝોલ્યુશન પાસ કરી રહ્યા है हम लोग, तो रेजोल्यूशन की कॉपी तो भेजनी चाहिए थी हमको साथ में कि हम लोग ये रेजोल्यूशन बना के पास कर रहे हैं आज। वो रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं आई इसमें। सर आप अगर 2 मई की नोटिस अगर आप पढ़ेंगे, 2 मई की जो सर्कुलेट की गई है उसमें आइटम नंबर 4 एंड 5 आप पढ़िए, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन पास करके भेजा है, बना के भेजा है, ताकि लोगों को पहले से पता चले कि क्या करना है हमको। अभी इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आप एक्सपेक्ट करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर है ट्रांसपेरेंसी कोई मेंटेन कर सकता है। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि इस तरह का आप दूसरी सोसाइटी में आप एग्जांपल बताओ जहाँ पे एडवांस में करके भेजा हो और विथ एक्सप्लेनेशन भेजा हो। आप एक एग्जांपल मुझे दिखाओ, आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। नहीं, इसमें तो सब पावर हम पूरा उसमें दे रहे हैं। जो रेजोल्यूशन 4 और 5 का ऑब्जेक्शन है, हम लोग एक प्रपोजल है कि जो कमिटी है उसका ये डिस्कशन होने के बाद, डेवलपर की डिस्कशन होने के बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है। वो ड्राफ्ट जनरल बॉडी के सामने उन्होंने रखा है कि इस तरह का हम अप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने भेजा है साथ में। उसके आप नीचे देखिए 11 पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेनेशन साथ में भेजा हुआ। नहीं वो तो आप बनाए, आपने ही बनाया है उसमें तो जी। हाँ, तो अपॉइंटमेंट विदाउट अपॉइंटमेंट हमने ड्राफ्ट बना दिया है इसका, ये सब करवा दिया है। नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है सर। सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट उन्होंने प्रवीण भाई ने बोला भी कि सब्जेक्ट टू अपॉइंटमेंट मार्च में किया हुआ है। और हमारा ये प्रपोजल ऐसा था कि फिजिकल मीटिंग रखने वाले थे और फिजिकल मीटिंग के लिए परमिशन के लिए अपने रजिस्टर में अभी आपके जो ऑफिस में है वो लोग जाके भी आए हैं, मार्च से पहले जाके आए, लेकिन परमिशन नहीं मिला। उसके बाद प्रपोजल ये रखा था कि हम लोग 50-50 मेंबर्स का ग्रुप बना के रखिए, वो प्रपोजल भी अप्रूव नहीं हुआ। लास्ट इस आखिर में फिर एजीएम में जूम मीटिंग का एक्सपेरिमेंट किया कि जूम मीटिंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर इसमें सक्सेस होते हैं तो नेक्स्ट आगे बढ़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि ये रातों रात आपने ये किया हुआ। अगर आपके पास कोई सजेशन है आप इनके साथ ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और ये प्रपोजल में रेजोल्यूशन में पूरा बराबर नहीं है, पूरा रेजोल्यूशन का चेंज करना पड़ेगा वर्डिंग। तो आप बोलिए ना, वो आपको भेजना चाहिए था सर। आपका सजेशन इतना सफिशिएंट टाइम अवेलेबल था, आप अभी कम से कम आपने 5 मिनट एग्रीगेट में बोला होगा। नहीं, एक भी बार ये टॉपिक आपने नहीं लिया था। नहीं, हमने लेटर भी भेजा है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने लेटर पढ़ा है सर, मैंने लेटर पढ़ा है और वो लेटर पे इनका रिप्लाई भी कमिटी वाले भेज रहे हैं और वो लेटर प्रॉपर नहीं है। इस तरह एक्चुअली नहीं करना चाहिए, ऐसा कमिटी का मानना है। क्या कमिटी का क्या मानना है? नहीं, पर रेजोल्यूशन अगर पास होता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है पावर। ये सब को हैंड ओवर कर रहे हैं सर। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ कि नहीं अभी हैंड ओवर पावर ऑफ नहीं अभी कुछ हैंड ओवर तो हो ही नहीं रहा सर। अभी कुछ हैंड ओवर तो हो ही नहीं रहा। जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता है आगे अपने हमारे और डेवलपर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट अभी तक हुआ नहीं है। राइट। इन द मीन टाइम वी आर गिविंग हिम टेम्पोररी अप्रूवल। राइट। There is no harm and he is doing things for us. Yes sir, गिरीश भाई। But are we committed? लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी हम लोग उनको दे रहे हैं। उस लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी में उनको सेल का पावर नहीं रहेगा, मॉर्गेज करने का पावर नहीं रहेगा,
या फ्लैट के साथ डील करने का पावर नहीं रहेगा। उनको सिर्फ लिमिटेड पावर ये रहेगा कि सोसाइटी के नाम से, सोसाइटी के बिहाफ पे आप बीएमसी या जो भी अथॉरिटीज है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, उनसे अप्रूवल ले। जो भी अप्रूवल्स लेनी है But are we committed? सोसाइटी के नाम से That आप is ले more सकते हो। important. उसकी जो कंडीशंस रहेंगी वो आप कंप्लाई कर सकते हो, पेमेंट भरना है वो आप कर सकते हो। अभी आपको पता है कि बीएमसी में से अप्रूवल लेना है तो 100 रुपया भरना रहता है, उसके अलावा भी और कुछ भी भरना पड़ता है, तो ये सारे रिस्क है उसके लिए। जब बिल्डर रिस्क ले रहा है वो ये सारे रिस्क अगर बिल्डर लेने रेडी है तो इस पर्टिकुलर टिपिकल सर्कमस्टेंसेस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम लोग आगे बढ़ने में कोई नहीं प्रॉब्लम है। मैं आपको आई एग्री विथ यू सर, आई एग्री विथ यू सर। यस, मैं आपको ये भी एश्योर करता हूँ कि इस पॉइंट पे सारी जितनी रीजनेबल क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी, जितनी भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए थी वो दी हुई है मेंबर्स को, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर आप इसको कोर्ट में भी चैलेंज करते हो, आज की तारीख में कोई कोर्ट इसको ना नहीं बोलेगी, इनफैक्ट कोर्ट इसको अप्रिशिएट करेगी कि इस तरह का अटेम्प्ट सोसाइटी कमेटी वाले जो हैं वो सोच रहे हैं सोसाइटी के इंटरेस्ट में। तो इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि कोर्ट इनको सपोर्ट करेगी और एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर ये इस रिजोल्यूशन को कोई चैलेंज करता है कोर्ट में तो ये रिजोल्यूशन कोर्ट सबको दिखाएगी कि भाई आपको भी ये काम करना चाहिए कि कोरोना में भी आपके लोग बैठे नहीं हैं और इस तरह के रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो जो नुक्स निकालने वाले हैं, जिनको ऑब्जेक्शन निकालने वाले हैं, वो अपनी पावर है, उनको गॉड गिफ्ट है कि ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। लोगों 100-200 लोगों के बीच में बोलने के लिए भी एक गट चाहिए, एक पावर चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो मैं बोलूंगा कि आप आगे आओ और आपका जो पावर है वो लोगों के इंटरेस्ट में आप यूज करो। संजय भाई सही बात है। हेलो संजय भाई। हाँ सर, अभिलेष सिंह जी मेरा बोलिए। नाम अखिलेश सिंह है। हाँ बोलिए। जैसा अभी आपने ये बोला कि ये पर्टिकुलर एक उनको पावर देना पड़ेगा हमें, जी ठीक है, हम अपना पावर देंगे, हम मतलब हमारी सोसाइटी अपना पावर तो दे देगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि उसके अंदर ये भी लिखा जाए जो हम उसको पावर नहीं दे रहे, क्योंकि कभी भी अनर्थ होता है। यस, नेगेटिव प्रोविजन भी लिखेंगे, आपकी बात सही है, और हमने लिखा हुआ है मैं आपको ये पावर दे रहा हूँ, मैं आपको ये पावर दे रहा हूँ और ये पावर नहीं दे रहा हूँ। राइट, परफेक्ट है सर, वो ऑलरेडी हम लोग ने प्रोविजन लिया हुआ है और उस तरह ही हम लोग कर रहे हैं। फिर भी आपने ये ऑब्जेक्ट पॉइंट दिया है, वेरी गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इस तरह का एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने लिया है। एज अ इंडिविजुअल मेंबर इस तरह का पॉइंट लेने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अखिलेश नहीं, आई अप्रिशिएट इट। अखिलेश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। And my request to general people that just for taking objection, please don't take objection. Just to take objection, because it is going to be a hurdle for our process. Please be careful about that. This is my request to all. गिरीश भाई, हो सकता है कि नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता है कि उनको काम करने का इंटरेस्ट भी हो और उनको रियल में उनको इंटरेस्ट हो कि सोसाइटी के और मेंबर्स के इंटरेस्ट में कुछ सजेशन देने चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या प्रॉपरली उनको पता नहीं कि क्या बोलना चाहिए। तो इसके लिए मैं उनको एनकरेज कर रहा हूँ कि आप आइए, मेरे साथ बात करिए। I appreciate your this proposal. I appreciate your this. तो वैसे लोग आगे आने चाहिए। ऐसे 20-25% लोग अगर सोसाइटी में इस तरह के एक्टिव रहेंगे तो सोसाइटी को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। संजय सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे। संजय सर, हाँ सॉरी, क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक मिनट मैं इनको मयंक भाई को देता हूँ। આપણે પોઈન્ટ નંબર 4 અને 5 એને પ્રપોઝ કોણ કરશે? ગિરીશભાઈ ગોહિલ, ગિરીશંકર તમને કરું? हाँ जी करो। ઓકે, અને સેકન્ડેડ બાય આપણે પ્રવીણા અમરાનિયા, ચંદ્રકાંત, हाँ ચંદ્રકાંતભાઈ અમરાનિયા, C306। ઓકે, થેન્ક યુ। હું આગળનો 6 નંબરના પોઈન્ટ માટે ડેડિયા અંકલ ને આપું છું। सर नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि टेंटेटिव शेड्यूल क्या होगा। सर टेंटेटिव शेड्यूल जो है एज ऑन डेट हम लोग फिक्स कंफर्म नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा। हमारा जनरल जो डिस्कशन कमेटी के साथ हुआ है वो इस तरह का डिस्कशन हुआ है, या डेवलपर के साथ भी जो डिस्कशन हुआ है कि डेवलपर एक साइड में अप्रूवल्स के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करेगा अपने लेवल पे, जो भी बीएमसी की प्रोसीजर्स रहेंगी, नॉर्म्स रहेंगी, उस तरह ऑनलाइन प्रोसीजर अलाउ करते हैं तो सारे अथॉरिटीज को अप्लाई करना वो स्टार्ट कर देंगे आफ्टर
getting proper resolution and power of attorney. तो limited power purpose attorney उनको मिल जाएगा, उसके बाद वो steps start करें. Simultaneously सोसाइटी कमिटी ये का सजेशन है कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो ऑलरेडी सर्कुलेट किया है 20th ऑफ मार्च को, शायद कुछ दिनों के आगे पीछे लोगों को मिला होगा और कुछ लोगों का उस पे पॉइंट्स भी मेरे पास आया है, इन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है. तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है. हाँ सर, तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, उसके ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कशन करें. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मीटिंग में वो पॉसिबल नहीं है. कम से कम 3-4 मीटिंग तो मिनिमम इस तरह की इंटरैक्टिव एक्शन डिस्कशन होंगे तो सोसाइटी की बेनिफिट में रहेगा. मेरा सजेशन ये है कि भले लोगों को एज ऑन डेट समझ में नहीं आ रहा हो, कोई पॉइंट आइडिया नहीं आता हो, लेकिन हम लोग एक बार डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है उनके माइंड में दूसरे पॉइंट्स आएंगे. तो ऐसे 2-3 डिस्कशन के सेशन हम लोग रखेंगे तो एक प्रॉपर वे आउट निकलेगा, या उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ जनरल बॉडी और बिल्डर्स, ये पॉसिबिलिटी आगे हो सकती है. ये एक स्टेप हो गया. सिमिलरली आपको प्लान सर्कुलेट किया गया है, टेंटेटिव डिजाइन्स भेजी हुई है, तो जो मेंबर्स को फ्लैट मिलने वाले हैं उसकी डिजाइन आपको भेजी हुई है. उसके लिए आर्किटेक्ट मुझे बात करना है सर, प्लान के बारे में मुझे बात करना है. नहीं, मैं अभी वो ले नहीं रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ अभी वो बात नहीं कर रहे सर. अखिलेश, मैं खाली बता रहा हूँ कि क्या क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकते हैं. तो साइमल्टेनियसली हम लोग प्लान को कैसे स्टडी करना चाहिए, उसको किस एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि सारी सोसाइटी में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि लोगों को इंटरेस्ट जो रहता है प्लान में रहता है. जब प्लान सर्कुलेट होता है और बिल्डिंग का डिजाइन सर्कुलेट होता है तब अचानक जो लोग सोए हुए हैं वो भी जागते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको विजुअलाइज तब होता है कि हमारा फ्लैट जो मिलने वाला है कैसा मिलने वाला है, तो इस तरह का डिजाइन मिलने वाला है, कौन से फ्लोर पे मिलने वाला है, कौन सी साइड पे मिलने वाला है, क्या नंबर रहेगा. ये जब डिटेल्स बाहर आती है तो लोगों का इंटरेस्ट बाहर आता है. और तब क्या होता है कि बीए कब तक पास हो गया रहता है. तो हम लोग ने ये स्टेप है साइमल्टेनियसली स्टार्ट रखा है ताकि वो भी ऑप्शन ओपन रहे और प्लान का भी ऑप्शन है वो ओपन रहेगा. तो लोग जो है प्लान अंडरस्टैंड करेंगे और इसी तरह की अलग अलग मीटिंग्स जो है प्रोफेशनल जो रहेंगे उनके साथ मीटिंग्स रख के, या पॉसिबल होगा तो कुछ लोगों को बुला के उनको एक फिक्स टाइम रखेंगे. उस दिन थोड़ा ये कोरोना का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जावे, उसके बाद वो भी पॉसिबल कर सकते. तो वो साइमल्टेनियसली हम चालू रखेंगे तो आपका प्लान और डीए का अप्रूवल वैसा हो जाएगा. और मेन टाइम आपके प्लान जो है अप्रूव होके आ गए, एक बार आपके प्लान से अप्रूवल आ जाएंगे बीएमसी से, और हमारे जो प्लान सोसाइटी ने अप्रूव किए हुए हैं वो दोनों का कंपेयर करेंगे, देखेंगे कोई डेविएशन नहीं है, तो फिर डेवलपर आपकी दूसरी प्रोसीजर जो है डीए को रजिस्टर करना है, क्योंकि उसके लिए पहले एडजुडिकेशन करना पड़ेगा. उसके लिए सारे मेंबर्स से डॉक्यूमेंट लगेगा, डीए के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आएगी. और डीए में मैं आपको बताऊं कि काफी सारे प्रोविजन फिर से रिवाइज किए हुए हैं, तो वो मेंबर्स को नए लगेंगे. हो सकता है उन्होंने कहीं सुने भी नहीं हो या डिस्कस नहीं भी किए हो, तो इसके लिए फिर से एक बार आप स्टडी कर लीजिए. कुछ प्रोविजन ऐसे हैं कि पर्टिकुलर ऐसी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तो इंडिविजुअल मेंबर के अगेंस्ट में भी हो सकते हैं. तो इस तरह के प्रोविजन आपको डिस्कशन करने के लिए चांस और मिल रहा है. अगर ये हम लोग ऑप्शन नहीं करते हैं तो वो चांस शायद नहीं मिलेगा, तो वो चांस हम लोग करेंगे. और डीए और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद, प्लान का अप्रूवल होने के बाद, फिर बिल्डर जो है आपको डीए की प्रोविजन के हिसाब से राइटिंग में इंटीमेशन देगा कि भाई आप अपना फ्लैट देखना शुरू करो और फिर फ्लैट आपको खाली करना है. ये टेंटेटिव शेड्यूल ये है. तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार हमारा ये सेशन क्लियर हो गया और थोड़ा स्टेप आगे बढ़ता है तो नेक्स्ट में हम लोग डीए की और प्लान के लिए मीटिंग्स ये महीने में या तो नेक्स्ट महीने में हम लोग स्टार्ट करेंगे. अभी आपको कोई पॉइंट्स बोलने हैं? यही महीने में अगर डीए के बारे में डिस्कशन के प्लान आप करोगे, आई थिंक इट विल बी एक्सपेडाइटिंग थिंग्स. हाँ, तो ट्राई करेंगे. That will be better. हाँ, ट्राई. જેવી રીતનો ટાઈમ મળશે એ રીતના કરશું આપણે આગળનું. क्योंकि there are lot of objection about the DA. तो जो भी डिस्कशन उसमें it will take maybe 1 or 2 meeting also. So let us do that way. અંકલ ડીએ માટે તો 2-3 મીટિંગ થશે. જેટલા બી ઓબ્જેક્શન છે, જે બી સજેશન્સ આવેલા છે એની માટે ડિસ્કશન માટે 2-3 મીટિંગ થશે. એક મીટિંગમાં તો પોસિબલ જ નહીં થાય.
અને કેવી રીતના આગળનું થાય છે કે આ કોરોનાનું કેવી રીતના થાય છે એના પ્રમાણે આગળનું વધશે એનું પછી. હા, લેટ અસ હોપ કે લોકડાઉન નહીં હોય ને આપણી ફિઝિકલ મીટિંગ થાય. હા, Let us બસ hope. બસ બસ. એટલે એવી રીતના જ કમિટીની ઈચ્છા That છે. will be best. केडिया सर, अखिलेश सिंह फिर से। हाँ बोलिए सर। मैं इसलिए मैं उसको बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था, तो सिंपल सा एक लाइन में क्वेश्चन करना था कि इन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है ना, हमारी मीटिंग में ऑलरेडी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बात हुई थी कि हर एक बिल्डिंग में पुरानी पार्टी और नए सेलर्स दोनों उसमें आएंगे, जो नए बायर रहेंगे। प्लान में उन्होंने सबको अलग अलग कर दिया गया। क्या ऐसा हो सकता नहीं था क्या कि एक बिल्डिंग में सेलर भी रहे और ये ओल्ड मतलब रहेगा, मतलब जो रहने वाले लोग हैं, पुराने जो रहने वाले हैं वो भी रहे और नए खरीदने वाले भी उसमें रहे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्योंकि बिल्डर ने एग्री किया था, बिल्डर ने ये लाइन एग्री किया था। बरोबर है। नहीं, ये आपके जो है ना, देखिए ये कॉम्बिनेशन जो है, हर एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और हर एक कॉम्बिनेशन का प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। कुछ एडवांटेजेस सोसाइटी के फेवर में है, कुछ डिसएडवांटेजेस डेवलपर के भी है। तो दोनों तरह का सिचुएशन होंगे। तो हम लोग को क्या रहेगा कि वो दोनों सिचुएशन सोसाइटी के जनरल बॉडी के सामने रखे जाएंगे, फिर आप एक डिसीजन लो कि भाई क्या करना चाहिए, जो भी सबको माइंड में बैठेगा कि हाँ ये प्रॉपर है। अभी हो सकता है कि एज ऑन डेट हम लोग को सही लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर में जाके ऐसा पॉसिबल है कि उसमें और भी जो ऑप्शन आज हम लोग को सही लग रहा है, कल जाके वो हो सकता है कि आपको प्रॉपर नहीं भी लग रहा हो। तो हम लोग को दोनों साइड जनरली बिल्डर विल नॉट एग्री विद दैट, बिकॉज जो नया परचेजर रहेगा, he would always like to stay separately than the old members. This is what my suggestion means, my thinking. गिरीश भाई, ऐसा नहीं हो सकता था। उसका रीजन ये है कि वो फ्लैट की साइज डिफरेंट है। समझो अगर वो सेल के फ्लैट की डिजाइन बिल्डर अलग कुछ रखना चाहता है तो मल्टीपल डिजाइन एक बिल्डिंग में डिजाइन वाइज पॉसिबल नहीं होता होगा, प्लानिंग कंस्ट्रेंट होता है। इसके लिए भी शायद ये मतलब एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट है। तो सारे प्लस माइनस जो है हम लोग को एक प्रॉपर मीटिंग खाली एक पॉइंट पे रखना है। अभी प्लान के ऊपर हम लोग 2-3 मीटिंग रखेंगे, डीए के ऊपर भी 2-3 मीटिंग रखेंगे। और मैं बोलूंगा कि मीटिंग के पहले जितने भी ऑब्जेक्शन है वो भी कम्युनिटी सॉरी सोसाइटी के ऑफिस में आवे, 1-to-1 बात करें और आपको जो भी सजेशन देने हैं आप मुझे बताइए, हम लोग 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। और इवन मैं कमेटी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के जो भी अलग अलग डिफरेंट व्यूज आते हैं उसको टॉलरेट करके और हमारे जो पहले के व्यूज रहेंगे एक दूसरे को साइड में रखें, सोसाइटी के इंटरेस्ट में और उनके इंटरेस्ट में हम लोग साथ में बात करेंगे और इस तरह का एक एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। राइट। लेकिन जहां तक अभी लॉकडाउन का सवाल है, अभी फिजिकल तो हम लोग तो सीनियर सिटीजन है, तो सोसाइटी में आने की शक्यता बहुत ज्यादा कम है। जी सही बात है। एक्चुअली रियल है कोरोना में, क्योंकि मेरे घर में सब हुआ है, बताइए क्या हो गया साहब? आपने बोला ना सजेशन, डेढ़े साहब બીજા કોઈને કઈ એનામાં સજેશન્સ કે કઈ આપવા? डेढ़े साहब हेलो एक मिनट प्रमोद भाई, दूसरे वीडियो बाकी मेंबर करें तो मैं क्या डेढ़े साहब प्रमोद भाई एक मिनट। हेलो समीर भाई प्लीज जरा आप म्यूट करेंगे प्लीज। हेलो वकील साहब, अभी जो एमेनिटीज हमको मिलेगी वो सब बिल्डिंग में एक ही रहेगी क्या अलग अलग रहेगी? नवीन भाई ये जो पॉइंट्स है ना वो उसके लिए अलग मीटिंग रखेंगे। अभी हमारा यही बात हो रहा था कि प्लानिंग है, एमेनिटीज है, बिल्डिंग की डिजाइन है, उसके लिए एक अलग फिर से मीटिंग रखेंगे। इसमें सिर्फ कोई बात अच्छा हेलो, एमेनिटीज का जो लिस्ट था ना वो खाली उसमें लिखा हुआ है जी में, लेकिन एमेनिटीज क्या क्या मिलने वाले कहीं भी नहीं लिखा। हाँ, वो एनेक्चर कुछ है, अटैच ही नहीं है। एनेक्शन जी है जी, जो आपके लेकिन एनेक्चर अटैच तो होना चाहिए। आपके टेंडर में या ऑफर लेटर में फाइनल अप्रूव हुआ है वही होगा। और फिर भी आपकी वो आपके और बिल्डर के बीच में है कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो दोनों पार्टीज के लिए तो वो ओपन है ही। कि टाइम के साथ साथ हो सकता है उसको भी चेंज करना हो सकता है आपको भी सजेशन हो।
जो टाइम के बाद आपको पर्टिकुलरली याद आएगा या समझ में आएगा कि क्या क्या करना है, उसके लिए एक अलग से एक लेकिन meeting डेडिया रखनी है। साहब हमको एम्यूनिटीज का लिस्ट ही नहीं आया है जो है वो लिस्ट, वो बात हुआ इनका एनेक्चर्स जो है एज ऑन डेट जो टेंडर में या तो बिल्डर से फाइनल रिवाइज ऑफर के टाइम पे जो फाइनल हुआ है वही है। और आपको अगर सर्कुलेट नहीं हुआ है तो फिर से मैं कमिटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भेज दे, और वो approve करते हैं कि वो भेज दे। प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। हाँ, अभी प्रमोद भाई आप क्या बोल रहे थे सर? नहीं, मैं अपना जो संजय सिंह साहब ने जो बोला है उसके साथ में मैं जाना चाहता हूँ। उनकी सजेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि बिल्डिंग में अगर हमारे लिए अलग से बना के दे दिया और अलग से अपनी बिल्डिंग बना रहा है तो उसमें एम्यूनिटीज का बहुत इंफीरिटी और की क्वालिटी का भी प्रॉब्लम होता है। अगर सेम बिल्डिंग में एकोमोडेट करते हैं प्रेजेंट कस्टमर रेसिडेंट वाले को, आई मीन टेनेंट को, तो बेटर रहता है कि एम्यूनिटीज सब बिल्डिंग में अच्छी मिलती है। दूसरा एक माहौल क्या बनता है कि माहौल एक बिल्डिंग में एक ही सोसाइटी में तो इंडिया पाकिस्तान जैसा बन जाता है कि क्या होता है कि ये हाई सोसाइटी वाले, लो सोसाइटी वाले, जैसे कि एसआरए वाले होते हैं, तो ये एसआरए वाले हैं, ये लो सोसाइटी वाले, ये हाई सोसाइटी। ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में कुछ एक्सटेंट तक ऐसे ही हुआ है। जी जी, हमारी ये हमको एक्सपीरियंस है, हमारी सोसाइटी में भी आपकी बात एक्सपीरियंस सही है, प्रैक्टिकल पॉइंट है वो, आपकी बात सही है। हमें सारे आई एग्री विथ यू प्रमोद, आई एग्री विथ यू પ્રમોદ ભાઈ હું તમને સપોર્ટ છે। આ બાબત સર હું એગ્રી કરું છું એની માટે। प्रमोद भाई आपकी जो पॉइंट है ना उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों हैं। आपको खाली एक अभी टाइम अपना रनिंग है तो मैं आपको विद परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट में बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि आपको वो टेक्निकल साइड भी देखना पड़ेगा। समझो हमारी फ्लैट की साइज 400 है तो उसकी कॉलम पोजीशन है या उसकी जो डिजाइन पोजीशन है वर्टिकली साइमल्टेनियसली सेम रहेगी। अभी उसमें अगर ऊपर बिल्डर को 700 का बनाना है या 600 फीट का बनाना है तो पॉसिबल है कि वो उसमें नहीं बना पाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है सर कि आपके अभी तो अलॉटमेंट नहीं हुआ है, समझो आपके मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे कि वो एक्स्ट्रा एरिया लेने वाले होंगे, तो अल्टीमेटली वो डिसीजन तब हो सकता है जब सारे मेंबर्स एक डिसीजन ले लेवे कि हमको कितना एरिया अल्टीमेटली लेना है या नहीं लेना है, फिर डिजाइनिंग फाइनल हो सकती है। तो उसके लिए पहला स्टेप सर आपका ये रहेगा कि अलोकेशन हो जावे। अलोकेशन के लिए है कि मेंबर्स अपना सजेशन देवे कि हमको कितना एक्स्ट्रा लेना है या नहीं लेना है, वो डिसीजन उनको लेना बहुत जरूरी है। पहले वो डिसीजन ले लेते हैं फिर प्लान फाइनल फ्रीज करने के लिए एक बेटर ऑप्शन पॉसिबल होगा। अभी समझिए आपकी एक बिल्डिंग में 20 फ्लैट बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, और 18 फ्लैट ही अलॉट हुए सोसाइटी के शेयर में से, तो नेचुरली 2 फ्लैट बचे तो बिल्डर के शेयर में ही गए। तो प्लस ये क्या है कि हमारे एप्लीकेशन आपके वैलिड है और आपने जो बोला है पॉइंट वो भी सही है, और उसके लिए जो प्रिकॉशंस सोसाइटी को रखनी चाहिए, सारे मेंबर्स को रखनी चाहिए, वो रखनी चाहिए। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्लानिंग वाइज इसको बिठाना भी जरूरी है, क्योंकि एफएसआई का कंजप्शन होगा या नहीं होगा वो सारे पॉइंट पे देखने चाहिए। यानी सिर्फ एक एंड नहीं, इतना बड़ा प्लॉट है, ये सब फिट कर सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। कोई अगर छोटा प्लॉट होता था, देखिए वो आज तो फाइनल हुआ नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं ये तो एडॉक बात कर रहा हूँ मैं कि ये पॉसिबिलिटी है। छोटा प्लॉट होता है तो इसमें नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं होती है सब ऑप्शन की। यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन है, फुली ऑप्शन है। That builder will also agree or disagree, no? वो जो है एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके लिए दोनों बीएमसी और बिल्डर और जो मेंबर्स हैं रिलेवेंट इस तरह के जिनको भी आइडिया है they should agree with each other. आते हैं, तो उनके साथ में बीएमसी की मीटिंग करके एक हम लोग अरेंजमेंट ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके इस तरह के जो सजेशंस हैं वो कैसे इनकॉर्पोरेट किए जाए। तो उसके लिए आप आगे आएंगे तो पॉसिबल है, और कमिटी और आप दोनों मिलके काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे जो भी इंडिविजुअल ग्रजेस है उसको साइड में रख के हम लोग काम कर सकते हैं। और भी एक डेडिया साहब एक और भी आजकल दिखाई पड़ रहा है कि काफी बड़ी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपर क्या करता है कि जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट रहती है, जो जिसके जॉब वर्क देता है, उसको बोलता है कि एक बिल्डिंग आप ले लीजिए, पूरा फ्लैट आपको ले रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ एक बिल्डिंग का। इस तरह से अपने को ये माहौल नहीं चाहिए अपने बिल्डिंग में। ये अपने जब डेवलपमेंट का एग्रीमेंट बात होती है तो इसमें ये तरह की ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि वो डेवलपर ऐसा नहीं हो कि एक बिल्डिंग बेच दे पूरा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाले को, और फिर बोले कि आप इसको डेवलप और ये अपने फ्री हो जावे।
काफी बॉम्बे की सोसाइटी में इसी आजकल हो रहे हैं, क्योंकि अपने को उसका अपने कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो ये क्या करते हैं, अपने तो लैंड तो मिल गया है, बाकी कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट नहीं करना है, तो किसी को भी खड़ा कर देता है और बोल देगा कि एक बिल्डिंग तू तेरे लिए है, रख ले, उसको जो बेचना करना तू मेरे को अपना बाकी बना के दे दे, 1 या 2 बिल्डिंग। That clause we can put it in the DA, no? प्रमोद भाई, हाँ वो है, ऑलरेडी प्रोविजन है। प्रमोद, डाल देंगे। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। प्रमोद भाई का कहना है कि जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट आप करते हो, तो जो डेवलपमेंट राइट्स बिल्डर को देते हैं, वो बिल्डर खुद ही बनाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो दूसरे कोई सब डेवलपर को अपॉइंट कर देवे और वो कॉन्ट्रैक्टर No. मान के चला I think that point is taken care of in the DA. और वो ऑलरेडी प्रोविजन डीए में है सर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ Yes, कि yes. ये मीटिंग जो है, हम लोग डीए पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ लिमिटेड एजेंडा की ये पावर ऑफ अटर्नी और इस तरह की प्रपोजल हम लोग आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, उसी के ऊपर है। डीए के ऊपर इस तरह के सजेशंस हैं। आप, मैं फिर से आप डिटेल में हर एक प्रोविजन को आप पढ़ो। मैं एक और हिंट आपको देता हूँ कि एक प्रोविजन समझो 1 नंबर है, उसको 3 नंबर के साथ आप पढ़ो। ये एग्जांपल बता रहा हूँ। वो दोनों के साथ पढ़ने के बाद आपको क्या दिख रहा है वो आप देखो, उस तरह से आप देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। उसके साथ प्रेजेंट मार्केट में क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, लोगों आज जिन सोसाइटीज में डिस्प्यूट चल रहा है या लिटिगेशन चल रहा है, तो क्या चल रहा है, उसका रीजन क्या है, वो सारे आप स्टडी करेंगे तो आपको फिर आइडिया आएगा कि हम लोग को क्या करना चाहिए। और विद इन पैरामीटर्स ऑफ जो कमर्शियल टर्म्स हमारी नक्की हुई है, उसके पैरामीटर्स में रह के फिर हम लोग सजेशंस ऑब्जेक्शंस हैं वो कंसिडर कर सकते हैं बिल्डर के साथ। एक और पॉइंट था मेरा। हाँ नवीन भाई। देरिया भाई, एक पॉइंट और था। हाँ, ये काफी, ये हमारे जो एग्रीमेंट हो गया 2 साल हो गए, अभी आपको उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे डेफिनेटली वो तो होगा ही आपका सर। आपका जो पीएमसी है, या नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सीए अपॉइंट करते हैं, जो नेटवर्क उस बिल्डर की एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो चेक करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट देगा, क्योंकि आपने जो चेक किया होगा वो चेंज होते रहता है। सेकेंडली, आपको ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखो कि जो पेपर है वो सिर्फ नेटवर्क नहीं रहती, उसमें बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स भी हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। वो हम लोग टाइम आएगा तब हम डिस्कशन करेंगे कि मल्टीपल एंगल से हम देखेंगे कि बिल्डर के साथ आप अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो सक्सेसफुली और विदाउट ऑब्जेक्शन और विदाउट डिले कंप्लीट कैसे हो, तो उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग, वो जब सिचुएशन आएगा और जब वो इवेंट आएगा तब हम लोग वो सारे पॉइंट्स कंसिडर करेंगे और सब डिस्कशन करेंगे। हाँ, नेटवर्क तो नेचुरली वो एक बेसिक पॉइंट है जो चेक करना ही है। हाँ सर जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ अगर कहूँ तो। हाँ सर। हाँ, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया है, इतने सिंपल वर्ड्स में समझाया है कि जो आदमी इतना नॉलेजेबल नहीं है वो भी समझ पा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। विदाउट एनी टेक्निकल टर्म्स आपने समझाया है, बहुत अच्छा किया है। और इस साथ हाँ, मैं आपके कमेटी मेंबर्स की, चेयरमैन और ट्रेजरर और सेक्रेटरी को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इस कोविड के टर्म्स में भी, कोविड के हालत में भी वो लोग बेचारे इतना काम कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, इस सब के लिए कर रहे हैं। उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ सर। I agree with you, sir. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस देम। सर, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि डेवलपमेंट के काम में जो भी कमेटी वाले आज है या पहले होंगे या आने वाले हैं, ये काम में कभी आपको थैंक यू बोलने वाले या अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। और अगर इस काम में आपको काम करना है तो गाली सुनने के बाद इग्नोर करते आपको It's a thankless job. आपको आता हो Thankless काम job. करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। मैं तो इनको जिस दिन मुझे पहले बुलाया तो मैंने पहले एक क्वेश्चन इनको ये पूछा कि आपको बहुत सारे एलिगेशन आएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, हो सकता है आप लोगों को समझा भी नहीं पाएंगे या सिचुएशन कभी ऐसी आएगी कि आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो उस वक्त अगर आप सबको साथ में लेके, उनके पर्सनल टोन है या उसके वर्ड्स पे नहीं जाना है, हम लोग को इनको देखना है कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में कितना वो पॉइंट है, उसको आपको ग्रास्प करना है, वो आपको ले लेना है, बाकी का छोड़ देना है। और वो अगर आपके इसमें है स्किल तो ही आप ये काम हाथ में लीजिए और तो ही आप ये पूरा कर सकते हैं। और ये मैं कहना चाहता, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर बेचारे इतना काम कर रहे हैं, थैंकलेस जॉब कर रहे हैं।
और सच में भगवान उनका भला करे। गॉड ब्लेस देम। सर मैं 2008-9 में सोसाइटी में सेक्रेटरी रह चुका हूँ और 3 साल मैंने काम किया है एज अ सेक्रेटरी, तो उसका एक्सपीरियंस मुझे आज काम आ रहा है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी आप ऐसा काम करते हो, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ कि अगर आप सही में ऑनेस्टी से काम करते हो तो कुदरत आपको उसका रिटर्न टाइम पे देती है। और मैं आपको सामने एग्जाम्पल हूँ कि कुदरत ने ऐसा काम करने के लिए मुझे फर्दर स्किल्स भी दिए और अपॉर्चुनिटीज भी दी और आगे प्रोग्रेस भी करवाया। तो ऑनेस्टी का ऑलवेज मिलता है, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन लोग ये ओकेजन में सर एक मिनट, ये ओकेजन में मैं अपने जो एक्स चेयरमैन और एक्स सेक्रेटरी जो बेचारे इस दुनिया में अभी नहीं रहे, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उनके लिए और श्रद्धांजलि देता हूं उनको। और मेंबर्स लोगों को बोलता हूं कि वो हमारे बहुत अच्छे वर्कर्स थे, बहुत सारा उसमें उन्होंने काम किया, ग्राउंड वर्क बहुत सारा किया है। और अभी जो नए कमिटी मेंबर्स आए हैं वो भी उनको फॉलो करते हुए इसी तरह काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और मेरा वंस अगेन ऑब्जेक्शन लेने वाले को अगेन मेरा रिक्वेस्ट है, खाली ऑब्जेक्शन लेने के लिए ऑब्जेक्शन मत लीजिए प्लीज, अपना काम होने दीजिए, क्योंकि हर किसी का घर इस हालत में है कि कब किस वक्त नीचे आ जाए किसी को पता नहीं है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। गिरीश भाई आपने अभी बीम का काम गिरीश भाई आई एम विथ यू। गिरीश भाई थैंक यू। हम सब आपके साथ है सर। सर हमारी एप्लीकेशन ऑफिशियल मैं अभी इनको दे रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। થેન્ક યુ ઓલ સોસાયટીના મેમ્બર્સ બધા, તમે આ રીતના સાથ સહકાર આપતા રહો કમિટીને, તમારા સાથ સહકારની જરૂર છે અને જે કમિટીને માટે તમે લોકો આટલા સારી રીતના સંભાળી રહ્યું અને અમને સાંભળ્યા તે બદલ બધાનો ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આ સાથે અમે સતીશભાઈનો બી આભાર માનીએ છીએ, થેન્ક યુ માનીએ છીએ કે આપણે કમિટીનું માન આપીને આપણને આટલું સારી રીતના સમજાવ્યું એ બદલ બધાને થેન્ક યુ. સતીશભાઈને બી થેન્ક યુ. ચેરમેન સાહેબ બોલે. બધા સોસાયટીના મેમ્બર્સ આ રીતના સાથ સહકાર આપતા રહે અને સોસાયટીનું મનોબળ, કમિટી મેમ્બર્સનું મનોબળ આવી રીતના જાળવી રહે તે બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને તમારો સાથ સહકારની જરૂર છે. થેન્ક યુ. અને બધાને મદદ જે મળી થેન્ક યુ. આ સાથે મીટિંગ એન્ડ કરીએ છીએ. જે કોઈના બી સજેશન્સ અને કોઈના બી સજેશન્સ કે કાંઈ બી હોય તે સોસાયટીમાં ઓબ્જેક્શન આપી શકો. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. All the best. All the best to all members. All the best. All the best. God bless. All the best. किसी को भी मेरी वजह से हर्ट हुआ हो या हो सकता है कि कोई ऐसा बात हुआ है तो मैं उनसे अपोलोजाइज करता हूँ, सॉरी कहता हूँ, इच्छा में बोलता हूँ। और मेरा या कमिटी में किसी का भी इंटेंशन नहीं है कि किसी को हर्ट हो या किसी को माइंड मतलब किसी को भी नुकसान हो या किसी को हर्ट हो, ऐसा स्टेप लेने का ऐसा सोचने का किसी का भी इंटेंशन नहीं है। फिर भी अगर उनको हर्ट हुआ तो हम सबकी और फिर रविंद्र भाई और ये सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सबसे सॉरी कहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरह हम लोग इको आ रहा है इको। वकील साहब एक ध्यान में रखना कि सोसाइटी का इंटरेस्ट में आप काम कीजिए। यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू. He is bound for that. He is bound for that. હવે આ મીટિંગ નો એન્ડ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ચલો આભાર, ધન્યવાદ. ઓલ ધ બેસ્ટ. धन्यवाद. All the best. All the best. Thank you. God bless you, sir. Thank you so much.